section. Yes, so we'll be starting with this chapter, students. जिनको नहीं पता है उनके लिए let us freshly start this. So this chapter which I'll be starting today is hydrocarbons. Okay, now in chemistry, students, if you have to speak about chemistry, in chemistry subject you will go through two sections. ठीक है, आप दो sections देखने वाले हो students. फर्स्ट सेक्शन जो आप विनीता मैम के साथ करोगे, ठीक है, विनीता मैम आपको सिखाएंगे केम 1 वाला पार्ट. केम 1 का पार्ट विनीता मैम के साथ आप सीखने वाले हो, ठीक है. एंड देन फॉर केम 2 आई विल बी स्टार्टिंग विथ यू एंड दैट चैप्टर वुड बी हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके साथ, दैट चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स. सो हु विल टेल मी हाइड्रोकार्बन्स मतलब व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स? हाइड्रोकार्बन्स में व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग? हाइड्रोकार्बन्स आर द मॉलिक्यूल्स which should contain which all atoms? कौन से atoms होंगे इन molecules में? Tell me students. Carbon. Carbon and hydrogen. Very good. Carbon and hydrogens. Carbon and hydrogens. Very good. So these atoms, these molecules would be made up of, I should not say atoms, I should say molecules. These molecules would be made up of hydrogens, hydrogens and carbons. Hydrogens and carbons. Correct? Hydrogens and carbons से बने हुए होंगे these molecules. These molecules must have been made up of hydrogens and carbons. Okay, so how many sections do I have in hydrocarbons, students? How many sections do I have in hydrocarbons? Okay, from now onwards you can start taking screenshots also. जब भी आपको मन करे, आपको लगता है ये मुझे डेटा चाहिए, you can keep on taking screenshots, students. Focus more on the content which I am speaking. ठीक है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. जो आपको आता है वो भी बार बार मत लिखो, जो आपको आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो सिंपली. अगर आपको चीजें नहीं आएंगी स्टूडेंट्स, इफ इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू हैव टू स्विच ऑन योर ऑडियो एंड टेल मी. ठीक है, आपको ऑडियो ऑन करना है और मुझे बोल देना है सर मुझे ये वाला बात जो आपने बोला नहीं समझ में आया. या अगर सपोज मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश में कुछ इशू हो गया, कोई वर्ड नहीं समझ में आया, आप मुझे ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो सर ये सेम बात मुझे प्लीज हिंदी में बता दो. Okay, and if in case you are facing difficulty with Hindi, you want me to explain something in English, you have to just switch on your audio and tell me, sir, please repeat the same thing in English. I'll do that for you. Okay, so if I speak about hydrocarbons, students, when I speak about hydrocarbons, I very well know these are the molecules which are made up of hydrogens and carbons. But if in case, like if I have to classify this batch, if I have to classify this batch, किसी ने अगर मुझे बोला इतने सारे बच्चे हैं, इनको क्लासिफाई करो, तो मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा? I can classify you people on many criteria, students. Criteria number 1, I can classify you people into boys and girls. Criteria number 2, I can classify you students on the basis of complexion. Then criteria number 3, I can classify you students on the basis of schools which you're coming from. कौन से स्कूल से आप आए हो? I can classify you students on the basis of अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, विले पार्ले ईस्ट, विले पार्ले वेस्ट. ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया से I can classify. लोकेशन के बेसिस पे I can classify. Height के बेसिस पे I can classify. People or students who are below 4 feet, who are below 5, who are above 5, who are above 4, इस तरह से I can classify. है ना? I can classify you on the basis of fat and thin, on the basis of weight. Different criterias. Similarly, can I classify hydrocarbons, students? Can I classify hydrocarbons? Yes. Yes. Definitely we can classify hydrocarbons, but first let us understand how many sections are there in hydrocarbons. So hydrocarbons chapter mein, I'll be taking you through 4 sections, students. We'll be studying 4 sections overall. First section would be alkanes. When I say alkanes, what do I mean, students? I mean carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond. No double bond, no triple bond. Am I clear with this, students? Am I clear with this? Tell me, am I clear Yes. with this? Shabash. Yes. Okay. Then next segment in hydrocarbons will be alkene. Okay, alkene will be next segment. C double bond C. इसको हम बोल देंगे alkene. ठीक है students? Next, third segment will be alkyne. Third segment will be alkyne, where I will have
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड पूरे चेन में होगा ही होगा। सो ऐसे कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे अल्काइन। If my hydrocarbon has double bond, I will call it as alkene. If my hydrocarbon has all carbon-carbon single bond, I will call it as, yes, students, bolo. If my hydrocarbon has carbon-carbon single bond, I will call Alkanes. it as Alkanes. alkanes. Very good. I will call it as alkane. Next, fourth segment of this chapter will be aromatic compound. So aromatic compounds को अभी मैं handle नहीं करने वाला हूँ students. I'll take it at the end of the chapter. Okay, aromatic compounds मतलब अभी simply मैं आपको बताना चाहूँ तो it is benzene का एक perfect example is benzene. Okay, benzene is perfect example for aromatic compounds. So right now we will just write benzene and that's it. So aromatic compound को अभी हम handle नहीं करने वाले हैं. Aromatic compounds को we will see later on. Okay, right now today I'll focus on alkanes, students. Okay, if you want you can take a screenshot. If you want you can take a screenshot now. This is your first segment. आपके notes में ये पहले पेज पे यही आने वाला है. Hydrocarbons, you have to define hydrocarbons first. What do I mean by this? Hydro. ठीक है, ये पार्ट मुझे क्या इंडिकेट करता है एंड ये पार्ट मुझे क्या इंडिकेट करता है. This is the first thing which should come on your first page. Okay, you have to define hydrocarbons. Hydrocarbons are the molecules which are made up of hydrogens and carbon or carbons. ये आपका पहला डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट्स. देन यू विल स्पेसिफाई कि कितने सेक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में. टोटल 4 पार्ट्स आर देयर. First part is alkane, alkene, alkyne and aromatic compounds. Total 4 parts, students. Clear है यहाँ तक? काफी simple है. This is very simple. Okay. Now suppose अगर मुझे तीसरा ने पूछा. Yes, yes. Can you repeat the definition of hydrocarbon? Okay, I'll repeat the definition of hydrocarbons. Hydrocarbons are the molecules which are made up of hydrogens and carbon or carbons. Why do I say carbon? Because methane has only one carbon. Okay, so hydrogens तो always multiples में रहते हैं. Plural form हमेशा मैं बोलूंगा. Hydrocarbons are the compounds having hydrogens and carbon or carbons. कार्बन क्यों बोला मैंने? जस्ट मीथेन के लिए. उसके अलावा सारे हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन्स होते हैं, मल्टीपल कार्बन्स होंगे. 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इज दैट क्लियर? रोहित क्लियर है? आगे चले जाएं, आगे चले जाएं. Yes, yes. चलो. Okay, so I hope you have taken the screenshot, students, and I hope you have mentioned the sections of this chapter. Okay, हाँ. So I was saying कि अगर अभी suppose अभी तीशा ने मुझे पूछा कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि how many sections are there, but can we classify them systematically? Can we classify them systematically? So yes, let us go into the classification. Let us understand hydrocarbons कितने types के होते हैं, students. How many types of hydrocarbons do I have? Okay, so this is my first category, students. Check karo. How can I classify hydrocarbons, students? How can I classify hydrocarbons specifically, category wise? So hydrocarbons can be classified as, they can be classified as straight chain hydrocarbons, that is open chain, I should say, open chain hydrocarbons. ठीक है, open chain hydrocarbons और cyclic hydrocarbons. Open chain और cyclic, open chain और cyclic. Simple है students? Simple है यहाँ तक? Okay. Now open chain can further be classified as, I'll be taking up examples also, don't worry. Examples भी बताऊंगा आपको. ठीक है? Open chain hydrocarbons can further be classified as saturated hydrocarbons or unsaturated hydrocarbons. Saturated or unsaturated. Saturated hydrocarbons means carbon carbon single bond. So कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स इसमें? बताओ मुझे. Alkane. सैचुरेटेड एग्जांपल बता दो मुझे. Alkane.
Alkane आ जाएगा, very good, alkanes आ जाएंगे. Can I include alkene also in this, students? Can I include alkene sir. also? No, because they will come under unsaturated. Correct, students? Can I include, where should I include alkyne? Where should I include alkyne? Saturated or unsaturated? Answer is unsaturated. Very good, students. Answer is unsaturated. Alkyne. Simple है. Check करो, simple है. अब तक समझ में आ गया? Open chain hydrocarbons. Saturated or unsaturated? Saturated में I have alkene. Unsaturated में, what do I mean by unsaturated? Carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond will be there. So that means it is unsaturated. Next, suppose Aditya ने मुझे पूछा, sir, saturated में you have put alkanes. Can I further classify alkanes? My answer would be yes. You can further classify alkanes. Even further, how? On what basis, students? On the basis of whether alkane is, shabash, whether alkane is straight chain or branch chain. Straight chain or branch chain. Let us first classify this and then example पे अपन immediately आ जाएंगे. Okay, students? So alkanes can further be classified as straight chain or branch chain. I'll write it over here. ठीक है? Alkane can further be classified as straight chain. Okay, students, or branched chain. Straight chain or branched chain. ठीक है? And same classification would hold true for alkane and alkyne also. Alkene and alkyne, इन दोनों को भी मैं straight chain and branch chain के basis पे I can classify very easily. Is this part understood, students? Is this part understood? Please take a screenshot. Please take a screenshot. Now what I'll do is I'll give you few structures and you have to tell me whether it is an alkane or alkene or alkyne. ठीक है? खाली मुझे बताना, आप naming नहीं करोगे. You just have to identify. Okay, students? And then you also have to identify whether it is a straight chain or branch chain. वो भी आपको identify करना है. Should we start? Yes, students? Can we start? चलो, start करते हैं? Yes, sir. I hope you've taken the screenshot, students. I hope you've taken the screenshot. ठीक है? चलो, I'm beginning now, so I'll delete this part. Students. Open chain के examples, we are going to look at open chain examples now. Okay, don't worry, I'll be sending you the classification chart also. ठीक है, students? Just a second. Let me have a look. हमारे पास classification कहाँ पे है? Hydrocarbons. Yes. So ये वाला जो chart है, yes, you can use this chart. ठीक है? हाँ, चलो आ जाते हैं वापस से इस पे. I'll give you some examples, students, and all those examples you have to tell me whether they are alkane or alkyne. That is the first thing you have to tell me, and then you have to tell me whether they are straight chain or branch chain. Keep on writing these structures in your book also. ठीक है? आपको book में भी लिखते रहना है इन structures को. Keep on writing these structures in your book also, as and when I write it on them screen. Students. So this is my first structure. CH3, CH2, 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 CH3. All the H I've written over here are all in capital letters. Okay, students? Yes. My first question is it an alkane or alkene or alkyne? Alkane. Tell me, students. Alkane. Alkane. Very good. Next question. Is it a saturated hydrocarbon or unsaturated hydrocarbon? Saturated. Very good. Who will reply me why saturated? Because it's alkane. Only single bond. Okay, that is very simple. Because it is alkene, it is saturated. And is there any other just technical answer? Because it has all carbon. Single bond. शाबाश. Carbon single bond होगा तो मैं बोल दूंगा saturated है भाई. कोई टेंशन की बात नहीं है. It is saturated. कोई टेंशन की बात नहीं. ठीक है? Okay. Next, students. It is saturated. I agree.
It is alkane, I agree. My next question is it a straight chain alkane or branched chain Straight alkane? chain. Straight chain. Straight chain. Straight chain. Very good, very good. It is a straight chain alkane. Why? How come? जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूं मैं. काफी लोगों को पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं. अगर आपको स्ट्रेट चेन डिसाइड करना है तो you have to start traveling from one end to the other end. बीच में रुकना नहीं है. You have to start traveling from one end to the other end. You can grow from left to right or right to left. कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो. That is not fixed. That is not compulsory. That is not an obligation. You can go in any direction, but you have to start from one end and you have to reach till the other end. In between, you cannot stop. Okay, students? Chalo. So I'll start. 1, 2, 3, 4, 5. देखो एक एंड से दूसरे एंड तक आ गया मैं स्टूडेंट्स. Did I miss any carbon? Did I miss any carbon? Did I miss any carbon? No, sir. Answer is no. आंसर इज नो. एक भी कार्बन आपने मिस नहीं किया सर. सारे कार्बन काउंट कर लिए. क्या बात है. आपको एक भी कार्बन काउंट करने के लिए रिटर्न नहीं जाना पड़ा. So that shows it is a straight chain. Okay, students, that shows it is a straight chain. If you want, you can take a screenshot. You can draw such an arrow in your book also, just to indicate students. आपको लगेगा अरे ये तो मुझे समझ में आ गया. सही बात है. बट आफ्टर 4 months, आफ्टर 5 months, शायद आपको डाउट आए कि यार स्ट्रेट चेन कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो दिस डायग्राम विल हेल्प यू. ओके, दिस स्ट्रक्चर विल हेल्प यू स्टूडेंट्स. ओके, चलो. सो आपके नोट्स में ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए व्हिच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. नाउ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया होता, प्लीज चेक दिस स्ट्रक्चर. प्लीज चेक दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स. CH3, CH2, 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 and CH3. Many of you must be knowing already this answer. Many of you must be knowing the answer, but others, please draw the structure in your book also, students. Draw the structure in your book also. Draw the structure in your book also. चलो, draw कर लिया. Draw कर लिया structure. चलो, should I move ahead? आगे बढ़ जाता हूँ. Sir, wait. Okay, now my question is whether this is straight chain or branch chain. So सबसे पहले मैं end identify करूंगा. This is one end and this is other end. ठीक है, बीच में कोई भी end नहीं है. रास्ता continue हो रहा है. Carbon chain is continuing. So these are the only 2 ends which I have. Now let me start my journey. This time suppose I'll start from right hand side. ठीक है, right hand side से start करेंगे. Yes, Suyesh, your answer is correct. So yes, your answer is correct. So I'll start from right hand side, students. सारे कार्बन काउंट करूंगा. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? I should count all the carbons. If I can count all the carbons without taking a return or reverse turn, without taking a reverse, without taking a U-turn, then surely it is a straight chain. अगर मुझे रिटर्न आना पड़ गया किसी कार्बन को काउंट करने के लिए, तो it will be a branched chain. Let me start, students. Very good, Shreya Sawant. चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I started from one end and I reached other end. Did I miss any carbon, students, in my journey? Did I miss any carbon? No. Answer is no. You have not missed any carbon. So this is a straight chain. ठीक है, maths के हिसाब से is this a straight line, students? Maths के No. हिसाब No, से sir. no. Chemistry के हिसाब से is it a straight carbon chain? Yes. Yes. Yes, very good. So that is where you have to identify. ठीक है, यहीं पे आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि स्ट्रेट चेन कौन सा है एंड स्ट्रेट लाइन. तो केमिस्ट्री में आपको लाइन नहीं देखना, केमिस्ट्री में आपको स्ट्रेट चेन देखना है. ठीक है, चलो, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. ठीक है, इस तरह से आप रैपिडली वी विल गो. चलो, अब थोड़ा सा फटाफट से करेंगे, फास्ट थोड़ा सा करेंगे. लेट अस आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स वेरी क्विकली नाउ. ठीक है, ओके. सो first you will have to define whether it is alkane, alkene or alkyne. ठीक है, so CH3, CH2, C double bond, CH2, CH3. Yes, students. Question number 1, saturated hydrocarbon or unsaturated? Unsaturated. Unsaturated, very good. If it is unsaturated, I can have 2 options, alkene or alkyne. Alkene. Alkene is correct answer. Very good. Double bond hai. So alkene. This is an alkene, students. Okay. Next question.
Straight chain alkene or branched Hard alkene? chain. Branch chain. Very good. It is a branched alkene. Very well done. Branched alkene. शाबाश. शाबाश. सबको समझ में आ गई स्टूडेंट्स की बातें? सबको समझ में आ गई? If you have not understood, please switch on your audio. Please ask me. So this is unsaturated hydrocarbon. Point number 1, unsaturated hydrocarbon. Point number 2, it is an alkene. Point number 3, it is a branched alkene. ठीक है? My next structure for you. My next structure for you, students. My next structure for you. C triple bond C, CH2, 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 and CH3, CH, H, and H. Tell me. Question number 1. Saturated hydrocarbon or unsaturated hydrocarbon? Unsaturated. Unsaturated hydrocarbon. Very good. Unsaturated is right answer. Unsaturated hydrocarbon. Shabash. Next. Unsaturated, I have two options. Alkene or alkyne? Alkyne. 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 Good. Very good. Everyone has to shout out loudly. माइक ऑन करने का, जोर से चिल्ला के आंसर देने का. ठीक है? आपके घर वाले भी डर जाएं, वैसे चिल्लाना है आपको. All right. So alkyne is right answer, students. Alkyne is right answer. My next question is straight chain or branch chain? Branch chain. Straight chain or branch chain, students? Straight chain. आराम से सोच के बताना. ठीक है? सोच के बताना. Straight chain alkyne or branched alkyne? Straight chain. Branch chain. Straight chain. Okay, so answer is straight chain. Answer is straight chain. ठीक है? Because ध्यान देना students. We speak about straight carbon chain, branched carbon chain. Again and again we say branched carbon, 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 carbon. So you don't have to worry about hydrogens over here. You don't have to worry about hydrogens over here. ठीक है? Let me start. So this is one end. This is another end. Let us start the journey. किसी भी end से you can start. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I've started from one end and I've gone till the other end. Did I miss any carbon, students? Did I miss any carbon? मैंने जानबूझ के स्टूडेंट्स पर्पसली मैंने ये हाइड्रोजन्स को ऐसे अलग अलग लिखा सो दैट आपको बहुत लोगों को इसमें आप ट्रैप में आ जाओ और बहुत लोग इस ट्रैप में फंस गए, है ना? आपको क्या लगा कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, ये देखो आपने यहां से स्टार्ट किया होगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपने यहां से स्टार्ट किया होगा, यहां से. अगर आपने यहां से स्टार्ट किया होगा तो आपको लगा होगा ये वाला तो हमने मिस कर दिया, ये भी हमने मिस कर दिया. सो दीज टू आर ब्रांचेस, बट दैट इज नॉट द केस. हाइड्रोजन्स को तो हम गिनते ही नहीं है. करेक्ट स्टूडेंट्स? वी जस्ट लुक एट द कार्बन्स. Okay, we just look at the carbons. Is that understood, students? Is that understood? Yes, Rohit. Rohit, is this clear now? Yes. Okay, shabash. Chalo. So what you can do is you can take a screenshot of this, students. You can take a screenshot of this. So this is a straight alkyne unsaturated hydrocarbon. Okay, straight chain. ठीक है? चलो, इतनी बातें समझ में आ गई मुझे. इतनी बातें समझ में आ गई स्टूडेंट्स. Should I move to cyclic compounds now? Should I move to cyclic compounds now? ठीक है? चलो, I hope you've written down the example also. Naming का टेंशन अभी मत लो. अभी खाली आपको आइडेंटिफाई करना है. नेमिंग मैं ही आपको सिखाऊंगा. I'm going to teach you naming. You don't have to worry, students. All right. In cyclic hydrocarbons also, same classification. कौन सा same, students? Saturated and unsaturated. Okay? Saturated and unsaturated. क्या बात है? बहुत simple, बहुत simple, बहुत simple, बहुत simple. Okay? So saturated में what I'll say, students, in case of saturated and cyclic compounds, simple example है. ये देखो, ये चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो दिस स्ट्रक्चर. इज इट साइक्लिक या ओपन चेन? कैसा स्ट्रक्चर है? Cyclic. साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, है ना? कितने डॉट्स दिख रहे हैं उतने कार्बन हैं स्टूडेंट्स. चेक करो 1 2 3 4. एक ऑर्डर में जाना है. ठीक है? यू कैन गो क्लॉकवाइज
और यू कैन गो एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी चलेगा, कोई भी तरीका चलेगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रांच नहीं, सो वेरी इजिली यू कैन rotate yourself. Okay, 1 2 3 4. How many carbons are there? These are 4 carbons. Okay, students, 4 dots, therefore 4 carbons I'll say. Okay, 4 carbons are there, and therefore name of this compound is cyclo. Cyclo word will indicate it is a cyclic structure. Okay, cyclobutane. Is this understood? Cyclobutane. Clear, students? Please draw the structure. Please draw the structure. This is cyclobutane. This is cyclobutane. Who will give me name of this compound, students? इस compound का नाम कौन मुझे देगा? ये देखो, ये structure का नाम, इसका नाम मुझे बताओ. Cyclohexene. Hexane is right answer. Cyclohexane. How? So कहीं से भी start करो, कहीं से भी, आपकी मर्जी. मेरी मर्जी मैं यहाँ start करूंगा. 1. ठीक है, बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, मुझे टेंशन की बात ही नहीं है, ब्रांच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ब्रांच है, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड. सो आई डोंट हैव टू वरी, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी कार्बन, काउंटिंग किसी भी कार्बन स्टार्ट करके किसी भी डायरेक्शन में आई कैन गो, बट कंटिन्यूअस काउंटिंग होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. सपोज आपने ऐसा किया ना, अगर स्टूडेंट्स 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स. व्हाई दिस इज रॉन्ग? देयर शुड बी एन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में आपको नंबरिंग करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग. कैसे आपको काउंटिंग करनी है स्टूडेंट्स? दिस इज द करेक्ट पैटर्न. नाउ 3 4 5 6. देयरफॉर क्या नेम होगा कंपाउंड का? साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन. इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर है ये बातें? क्लियर है ये बातें? चलो आगे चले जाओ. Yes, sir. So ये किसके एग्जांपल्स थे स्टूडेंट्स? These were examples of saturated cyclic compounds. Saturated. Now I'll come to unsaturated. ठीक है, unsaturated में आता हूँ स्टूडेंट्स. So unsaturated में दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. Two possibilities are there. Two possibilities are there students. ठीक है, I'll delete this structure first. ये delete कर देता हूँ मैं. Now I'll come to unsaturated. So in unsaturated again I can classify it into two types students. दो टाइप में classify कर सकता हूँ. Either it can be non-aromatic or it can be aromatic. Okay, so unsaturated cyclic compounds के again दो क्लासेस होते हैं. जैसे ब्रांच अनब्रांच्ड आपने ओपन चेन में देखा, वैसे यहाँ पे ओनली इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में कोई क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं होगा, बट अनसैचुरेटेड में यू मे क्लासिफाई फर्दर एज नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक. सो अभी के लिए स्टूडेंट्स, एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ एरोमेटिक. एरोमेटिक को मैं डिटेल में नहीं देखने वाला हूं. Therefore, I will give you just one example of benzene once again. Benzene का example you can write over here. Benzene का example you can write over here. And this is the structure which you have to take for aromatic, unsaturated and aromatic. Okay. Non-aromatic कोई मुझे पूछेगा तो मैं बहुत सिंपल तरीके से सिंपल वाला एग्जांपल ले लूं स्टूडेंट्स. नॉन एरोमेटिक के लिए सिंपल एग्जांपल ले लूं. ये देखो, मुझे पहले बताओ इसका नाम क्या है? Cyclobutane. साइक्लोब्यूटेन है ना. आप बोलोगे सर ये तो सैचुरेटेड वाले का एग्जांपल था, ये तो सैचुरेटेड का एग्जांपल था. करेक्ट है स्टूडेंट्स, बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं. करेक्ट है, बट मैं एक I'll do just one change and will convert into unsaturated. चेक करो स्टूडेंट्स, प्लीज चेक करो. ये देखो क्या हो गया. Now this is carbon carbon double bond. Can I say this is carbon carbon double bond? Yes, sir. है ना, डबल बॉन्ड आ गया. Yes, Shreyas. Any doubts, Shreyas? No. Any doubt? Okay, ठीक है. चलो, is this clear students? चेक करो. So non aromatic, unsaturated मैंने कैसे कर दिया? एक डबल बॉन्ड डाल के इसको unsaturated बना दिया. But how is it non aromatic sir? So इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा. जब आपको ये कब समझ में आएगा what is aromatic, what is non aromatic, when you will do aromatic part of this chapter. So I'm not going into details of this students right now. ठीक है, खाली मैंने आपको हेल्प किया ये समझने में कि how to identify
saturated and unsaturated compounds between cyclic compounds में देखो ये दोनों आप differentiate कर सकते हो. One is cyclic but saturated, other is cyclic but unsaturated. अभी आपको खाली इतना ही identify करना है students. Okay? Non-aromatic क्यों बोला आपने? वो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया. That I will teach you later on. Is that clear? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you students? Yes, sir. ठीक है, so इस structure का नाम क्या होगा by the way? Name of this structure will be Cyclobutene. very good. Cyclobutene. That is the name. Cyclobutene. Please write down the name students. And इसका name लिख दो benzene. So आपके examples भी हो गए, ठीक है? आपके examples भी हो गए students. All right, are we clear with this? All of you, any doubts till now, Yes. students? Any doubts till now? Please ask me. Any doubts till now? Please ask me. Chalo, if you want to take a screenshot, you can go for screenshot. I'm deleting this image now. This screen में delete कर रहा हूँ पूरी तरह से. I'm deleting the screen now, students. I'm deleting the screen now. चलो, so now I'll upload an image for you. ठीक है, एक image upload कर देता हूँ. You can go through that image. That is the classification chart for hydrocarbons. Okay, students, hydrocarbons का classification chart एक मैं आपको upload कर रहा हूँ. You can go through that chart. Yes, this is the chart. Check करो आपको सब कुछ समझ में आया क्या students? Please go through the chart and check if you have understood everything up till now. If you have understood everything up till now, please go through this chart. Please go through this chart, students, and see if you have understood everything up till now. Hydrocarbons classification, open chain and cyclic. Open chain are also known as aliphatic. Aliphatic hydrocarbons. And then I have, under aliphatic, we have again varieties. We can have saturated or unsaturated. Saturated means you have alkanes. Unsaturated means you have alkenes and alkynes. Further, they can further be classified as straight chain or branch chain. Next, you move towards cyclo compound students. Cyclic structures may be again have variety. Saturated, unsaturated. Unsaturated में you have aromatic or non-aromatic, but वो हमको अभी पढ़ाई नहीं करनी है. खाली लिख के रख देना है, पढ़ाई अभी नहीं करनी है उसकी. बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, but towards the end of each chapter. Okay? Is this clear, students? Yes, sir. इतना तक समझ में आ गया हमको. कोई भी डाउट है अब तक प्लीज पूछ लो मुझे. If you have any doubt, you can ask me. Nevan, please tell me, have you understood everything, Nevan? Clear? Very good, shabash. What about you, Akshat? Akshat, what about you? Clear. Clear, very good. Very good. Rutvik, what about you, Rutvik? I understand. Clear? Understood. Okay, shabash. Well done. Soham, Clear है sir. clear है, shabash. Tisha Parmar. Yes, sir. Okay, very good. Parshwasha. Parshwasha. Clear है sir. Okay, Shreya Savant. Shreya Savant. Yes sir. Mitesh, what about you, Mitesh? Yes sir. Kavya. Kavya. Yes, okay. ठीक है, चलो. Let us go ahead, students. आगे चलते हैं, ठीक है? I hope you have taken screenshot of this chart also. You have to draw this chart in your book and as your homework also. आपके homework में भी ये chart मुझे देखना है, ठीक है? With examples. मैंने आपको examples के साथ सिखाया है. So for every class you will have to draw examples. Okay, students? ठीक है? Like for example, अगर आप मुझे पूछते हो सर straight chain में क्या draw करूँ? So straight chain alkane over here you can draw N-pentane. Then यहाँ पे you can draw isopentane. Branch के लिए. Similarly, alkene and alkyne का भी straight chain branch chain you can draw. आपको naming नहीं आता है तो you can avoid naming. No problem at all. ठीक है? आप naming नहीं करो. खाली branch structures draw करो. So that you can identify properly.
सैचुरेटेड में यू कैन ड्रॉ ओवर हियर साइक्लोब्यूटेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन याद आ रहा है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया। देन यहाँ पे एरोमेटिक के लिए बेंजीन, नॉन एरोमेटिक के लिए सिंपल साइक्लोब्यूटीन। देखो ऐसा कुछ बना दो, सिंपल साइक्लोब्यूटीन ओवर हियर, नॉन एरोमेटिक के लिए, इसके लिए, ठीक है। ओके, सब क्लियर हो, सबके सब क्लियर हो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर क्लियर, है ना। चलो आगे चले जाएं। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दी नेमिंग कल्चर स्टूडेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अभी ये अगेन बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है इसकी, तो कोई बात नहीं है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनको फटाफट से आंसर्स देना है मुझे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको अच्छे से समझ लेना है, एंड यू हैव टू टेल मी कि सर मुझे समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम विद दैट। या आपको मुझे ये भी बता सकते हो आपकी, मुझे सर नहीं समझ में आया, फिर से बता दो, गिव मी सम मोर एग्जांपल्स। ओके, सो आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी। All right, चलो, so let us begin students. Alkane का nomenclature you're going to learn today. Alkane nomenclature, so that once आज अगर nomenclature अपना part students clear हो जाता है, so we can move into the reaction part. Next time we can move into the reactions part, ठीक है। preparations पे अपन चले जाएंगे immediately, जो main part है organic chemistry का, preparations उस section पे अपन चले जाएंगे। Okay, so alkane nomenclature में if I go, alkane के कितने टाइप ऑफ नेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 नेम्स आर पॉसिबल, ठीक है। जैसे आपके केस में, हमारे केस में से अपने घर पे रहता है ना, एक नाम अपना बड़ा सा नाम जो अपने स्कूल के सर्टिफिकेट पे आ जाता है, मार्कशीट पे आता है, एंड एक नाम जो अपने को घर पे प्यार से बुलाते हैं ना, प्यार से अपने को घर पे छोटा, छोटी, मोटी, ऐसा अलग अलग नाम रहता है ना आपका, है ना। सो वो जो अलग अलग नाम है, उन नेम्स को मैं क्या बोलता हूँ? उन नेम्स को आई कैन से कि दीज आर कॉमन नेम्स। क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स अपन उनको? कॉमन नेम्स बुलाते हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर सर्टेन केमिकल नेम्स जिनको हम बोलते हैं आयुपैक, ठीक है। तो ये केमिकल नेम बोलेंगे या आयुपैक बोल देंगे, कॉमन नेम्स एंड आयुपैक। ओके स्टूडेंट्स, so please keep on noting this down. Alkane nomenclature we are studying, or else see, अगर आप मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो तो आप खाली स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। आपको नोट डाउन नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा तभी आपको लिखना है। ये सब बातें अगर आप मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो लेक्चर, तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो, एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ। लेटर ऑन यू कैन राइट दीज फ्लो चार्ट्स, अभी ये सब फ्लो चार्ट्स आप मत बनाओ, लेटर ऑन यू कैन राइट देम। ओके स्टूडेंट्स, सो alkane nomenclature में common name and IUPAC मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। Let us start with common name. So how to give common name to an alkane, वो मैं अब सीखने वाला हूँ, ठीक है। Should I go ahead? Should I Yeah. start students? Okay, let us begin. So alkanes का common naming, alkanes common naming. Now students, आपके ही बैच से, not CET batch, but yes, NEET batch से, there is one student, Rebecca Dias. She has already prepared a video on this. Okay, Rebecca has already prepared a video on this common naming, and very nice video she has prepared. Very nice video. So I'll be sharing that video link with you also. ठीक है। So after this session, ये लेक्चर के बाद जरूर जाके उसका वीडियो चेक करना, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, once you have understood, go back and see her video. आपको उसका भी वीडियो देखना जरूरी है। She has very nicely explained everything, how to identify straight chain, branch chain, IUPAC, कॉमन नेमिंग कैसे देनी है, कौन से तरीके हैं कॉमन नेमिंग के, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कॉमन नेमिंग के, सब कुछ उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आफ्टर लेक्चर आप क्या करो, उसका भी वीडियो चेक करो, और उसने वीडियोस में जो अपने स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं, the structures which she has used in her videos. So what you can do is, in her video structures which you can use, what you can do is, उसके वीडियो स्टार्ट करो, जैसे उसका स्ट्रक्चर आता है आप पॉज कर दो वीडियो को, पॉज करके what you can do is, you can try to name that structure by common naming system. मैं भी आपको सिखाऊंगा, तो ये टेक्निक यूज करके you try to name this structure, कि हाँ इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम ये होगा। आपने आंसर लिख दिया, देन वापस से वीडियो प्ले करो, एंड देन चेक करो कि रेबेका ने क्या आंसर दिया। अगर रेबेका का भी वही आंसर आया जो आपका आंसर आया, दैट मींस आपको बात समझ में आ गई, है ना, करेक्ट है। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज हर वीडियो, इस तरह से आपको उसका वीडियो यूज करना है, ठीक है। सो पूरा वीडियो मत देख लेना, एक एक करके पॉज कर करके चेक करने का, पॉज करने का,
खुद भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, सेम स्ट्रक्चर जो रेबेका ने ड्रॉ किया है वही स्ट्रक्चर आप भी ड्रॉ करो एंड ट्राई टू आंसर इट एंड देन चेक करो आपका आंसर करेक्ट है, मैच कर रहा है क्या उसके आंसर से। ओके चलो, सो अल्केन कॉमन नेमिंग में स्टूडेंट्स देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन स्टेप्स, ठीक है, कुछ स्टेप्स होंगे अल्केन के कॉमन नेमिंग में। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, चलो मैंने स्ट्रक्चर कौन सा दे दिया, ये वाला CH3 CH2 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 then CH2 and CH3, this is one structure, ठीक है। if I ask अक्षत की अक्षत मुझे इसका कॉमन नेमिंग बता दे, तो अक्षत का अप्रोच कैसा होगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग विच अक्षत विल आस्क हिमसेल्फ इज, फर्स्ट थिंग दैट ही शुड आस्क हिमसेल्फ इज, हमेशा स्टूडेंट्स फॉलो दीज स्टेप्स, okay, follow these steps. I want all of you to write them in your notebook also later on. अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, बट आपका होमवर्क होगा कि आप ये सारे स्टेप्स लिखो स्टूडेंट्स, सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे एंड हर बार ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। ओके, इफ यू फॉलो ऑल दी स्टेप्स हमेशा आपका आंसर राइट जाएगा, हमेशा जिस ऑर्डर में मैं बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर में फॉलो करो, ठीक है। सो स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई carbon chain, identify if the carbon chain is, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स। आइडेंटिफाई इफ कार्बन चेन इज स्ट्रेट और branched, identify if carbon chain is straight or branched, straight or branched, straight or branched. Yes, Rutvik, tell me, is it a straight chain or branch chain? Straight chain, sir. Straight chain, that is right answer. Very good, Rutvik, shabash. How did he identify students? बहुत सिंपल है, ऋत्विक ने क्या किया, ऋत्विक ने पहले डिसाइड किया कि ये रहा मेरा एक एंड और ये रहा मेरा दूसरा एंड, है ना। ऋत्विक से कि दिस इज वन एंड, ऋत्विक इसको भी एंड बना सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज इस कार्बन के पहले भी एक कार्बन है, इस कार्बन के बाद भी एक कार्बन है, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट एन एंड स्टूडेंट्स, है ना, ये तो एक एंड नहीं हो सकता, देयरफॉर ऋत्विक ने इसको एंड नहीं बनाया, है ना। सो आपको ध्यान से एंड आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है प्रॉपर्ली। ओके, नाउ ऋत्विक ने क्या किया, ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग, उसने अपना बाइक स्टार्ट किया एंड बाइक कहां से स्टार्ट किया, यहां से सपोज, और नाउ अगर उसने सारे कार्बन एक बार में काउंट कर लिया बिना रिटर्न मारे तो इट इज अ स्ट्रेट चेन। लेट अस चेक, 1 2 3 4 5 6, यस, सारे कार्बन काउंट हो गए, करेक्ट है स्टूडेंट्स। ऋत्विक को रिटर्न आने की जरूरत पड़ी क्या किसी कार्बन को काउंट करने के लिए, रिटर्न आने का जरूरत पड़ा क्या, नहीं, है ना। सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन अल्केन, वेरी वेल डन ऋत्विक। सो अगर स्ट्रेट चेन अल्केन है स्टूडेंट्स, इनिशियली देखो कैसा होगा, स्टार्टिंग में आपको जैसे मैं बार बार एरो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वैसे आप भी पेंसिल से एरो ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, ठीक है, पेंसिल से एरो ड्रॉ करो। सो उससे क्या होगा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप ऐसे मत सोचो कि सर बार बार ये क्यों बता रहे हैं यार, ये तो मैं समझ गया, फिर भी बार बार क्यों बता रहे हैं, देयर इज रीजन, बिकॉज बच्चे लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको मिस्टेक करवा सकता हूँ, अभी के अभी आपको मिस्टेक्स करवा सकता हूँ इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स देकर, यू विल डेफिनेटली डू अ मिस्टेक ओवर हियर एंड आई गारंटी यू आपका अभी मैं मिस्टेक करवा दूंगा, आपको समझने के बावजूद मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इमीडिएटली व्हाट यू विल डू, जैसे ही ऋत्विक ने आइडेंटिफाई किया, यू विल ड्रॉ सच अ चेन, ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लो, yes, this is the longest straight chain possible. Clear है बात students? Okay, now decide a prefix, चलो एक prefix decide करते हैं, उसके पहले मैं step 2 बोलूंगा, हाँ step 2 मैं बोलूंगा students, count total number of carbons, चलो count total carbons, अगर आपके पास ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स, कार्बन चेन में ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस को भी काउंट कर लो, टोटल कार्बन्स आई एम सेइंग, काउंट ऑल द कार्बन्स एंड नेम द अल्केन, अल्केन का नाम दे दो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स। सो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर ओवर इन दिस केस स्टूडेंट्स, इन दिस केस हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, how many carbons are there, very well done Rutvik, very well done Rutvik, I've got your message in the chat box, 6 carbon.
6 carbons. Very well done, students. 6 carbons. 1 2 3. पेंसिल ले लेना है आपको, ठीक है? पेंसिल लेके नंबरिंग करनी है स्टूडेंट्स, ऐसे पेंसिल लेकर नंबरिंग कर देनी है, ठीक है? फ्रॉम एनी एंड यू कैन स्टार्ट, यू जस्ट नंबरिंग, यू जस्ट काउंटिंग कर लिया मैंने स्टूडेंट्स। 6 कार्बन्स आ गए मेरे। सो नेम ऑफ अल्केन क्या होगा? कैन आई राइट हेक्सेन ओवर हियर? बोलो स्टूडेंट्स, कैन आई राइट हेक्सेन ओवर हियर? बिकॉज देयर आर 6 कार्बन्स, सो आई राइट हेक्सेन। ओके, मैंने हेक्सेन लिख दिया। नेक्स्ट, हेक्सेन के जस्ट पहले क्या आएगा? अब सवाल उस पे होता है, बिकॉज कॉमन नेमिंग कैसे होते हैं आपको रिस्पेक्टफुली लेना पड़ता है। इफ आई से सोहम, खाली मैं बोलता हूँ सोहम कैसा है, तो सोहम गुस्सा हो जाएगा। सोहम क्या बोलेगा? मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाओ प्लीज। इफ आई से आदित्य कैसा है, आदित्य भी गुस्सा हो गया, आदित्य बोला मुझे भी रिस्पेक्टफुली बुलाओ। इफ आई से भूमि कैसी है, भूमि भी गुस्सा हो गई। मैंने सोचा ये सब गुस्सा क्यों हो जा रहे हैं, नाराज क्यों हो जा रहे हैं? सो देन आई आइडेंटिफाइड कि ओके, दे वांट मी टू यूज प्रीफिक्स आल्सो। सो नाउ आई विल से yes Mr. Soham, how are you? So Mr. Soham will say, I'm very fine, how are you sir? Now he's fine with this. If I say Aditya, Mr. Aditya कैसा है? Mr. Mitesh, how are you? Miss Bhumi, how are you? Miss Dhanashree, how are you? Miss Manasvi, Mr. Shreyash, Mr. Akshat, Mr. Nevan, Mr. Abdullah, Mr. Rohit, Miss Tisha, Mr. Darshan, Mr. Suyash, Mr. Aryan Savant, मिस काव्या वसानी। सो जब ये मिस्टर मिस लगा रहा हूं, प्रीफिक्स लगा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बताओ। प्रीफिक्स। आपका कोई नाम पूछेगा कि तिशा मुझे नाम बता, तो तिशा क्या बोलेगी? मेरा नाम है मिस तिशा परमार। ऐसा बोलेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगी ना। वो क्या बोलेगी? मेरा नाम है तिशा, तिशा परमार। मिस नहीं बोलेगी। सो मिस क्या है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हर नेम, इट इज जस्ट अ प्रीफिक्स। Okay, so third step is decide a prefix. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं। ओके, ध्यान देना यहाँ पे। थर्ड स्टेप इज decide a suitable prefix. Decide a suitable prefix. कितने ऑप्शंस है सर मेरे पास? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। Either you can use n, या you can use iso, या you can use neo. n iso neo, n iso neo। भूमि समझ में आ रहा है सब कुछ? भूमि समझ में आ रहा है? yes भूमि, tell me. okay, I can't hear you, आवाज नहीं आ रही मुझे। okay, yes, I understood you're saying yes, but आवाज अभी भी नहीं आ रही है। तिशा, what about you? फेस से लग रहा है कंफ्यूजन है। No, sir, I understand. You're understanding. Okay, very good, very good. ठीक है, शाबाश। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है क्या बोरिंग, क्या नॉनसेंस चालू है यार, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है तो प्लीज मुझे कन्वे कर दो, सो दैट मैं आपको कोई और तरीके से ट्राई करूंगा समझाने का। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ रहा तो कोई और तरीका ट्राई कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप लेक्चर एंजॉय नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, लेक्चर का मजा नहीं ले पाओगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करूं। सो प्रीफिक्स डिसाइड करना है। प्रीफिक्स कितने ऑप्शंस है अपने पास? 3 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। वी हैव 3 ऑप्शंस ओवर हियर, वी हैव 3 ऑप्शंस ओवर हियर। ठीक है, सो इस केस में कौन सा ऑप्शन मैं लूंगा? बिकॉज इट इज स्ट्रेट चेन स्टूडेंट्स। जब भी कार्बन चेन स्ट्रेट चेन होगा, जब भी कार्बन चेन स्ट्रेट होगा, ब्रांच नहीं है ये तो स्ट्रेट चेन है। सो स्ट्रेट चेन के लिए ऑलवेज प्रीफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा एन हेक्सेन। एन आ गया प्रीफिक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? एन कब सिलेक्ट करोगे आप? जब वो स्ट्रेट चेन है, तो इस केस में तो स्ट्रेट चेन है। ऋत्विक ने अपने को बता दिया है ना, ऋत्विक ने हमको बताया कि ये सर स्ट्रेट चेन है, ब्रांच नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट चेन। सो व्हेनेवर इट इज अ स्ट्रेट चेन, यूज द प्रीफिक्स एन। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज दिस अंडरस्टूड? ये आपके नोट्स में जाएगा, इसको प्रॉपर्ली लिख पाओगे आप। पहला 3 स्टेप्स लिखोगे, देन आपका पहला स्ट्रक्चर ये वाला होगा, एंड आप इसको कैसे, इसका नेम कैसे डिराइव करोगे? ऐसे पेंसिल से बॉक्स बनाने का, लिखने का। स्टेप 1, yes it is straight. Step 2, total there are 6 carbons, so hexane. Step 3, because it is straight chain, therefore prefix will be n. समझ में आया? तीनों स्टेप्स यूज कर लिया मैंने स्टूडेंट्स, तीनों स्टेप यूज कर लिया। रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, लेट मी सी,
Let me see. Raise your hand. Very good, Sujal. Darshan, Rohit, Abdullah, Suyash, Soumya, Tisha. Shabash. Very good. Very good. Very good. Okay. Okay. What about you, Rohit? Rohit, समझ में आया रोहित? सोहम, रोहित, Kavya, Aryan Sawant. Okay. Now students, now आपका next question होना चाहिए सर ISO मैं कब use करूँ ISO? तो चलो, I hope you have taken the screenshot, students. I hope you have taken screenshot. If you want, you can draw this structure also in your book. आपको draw करना है ये structure तो draw कर लो. I'll wait for you. You can draw this structure in your book. I'll wait for you. चलो, draw कर लो structure. Structure draw कर लो. And अपने knowledge के लिए, just for your knowledge, student. Just for your knowledge, students, you can write step 1. लिखो step 1, it is straight chain. Step 2, total 6 carbons, therefore name is hexane. Step 3, because it is straight chain, prefix will be n. तो ऐसे भी लिख लो आप, so आपको knowledge आ जाए कि हाँ इस तरह से मुझे approach करना है. ये सारे steps, all these 3 steps you should follow every single time, students. Every single time आपको follow करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे जाऊं मैं. I'll go to next structure, ठीक है? I'll go to next structure, students. All right. So this is my next structure. Over here, students, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. चलो स्टेप 1 करते हैं स्टूडेंट्स. आपने स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया बुक में स्ट्रक्चर. ऑल ऑफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर बुक. ऑल ऑफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर बुक. चलो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं. सो यू हैव टू फोकस ओवर हियर. ओके, फोकस ओवर हियर प्लीज. ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फोकस ओवर हियर नाउ स्टूडेंट्स. माय क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप 1 क्या है? स्ट्रेट चेन की ब्रांच चेन. टेल मी, एवरीवन टेल मी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन? Branch. Branch. Definitely a branch chain. Very good. So branch chain में भी students, branch chain में भी longest straight chain कौन सा है वो identify पहले कर लो. चलो, so ये हो सकता है मेरा longest straight chain. अगर branch में भी सबसे longest straight chain कौन सा है तो ये वाला हो सकता है straight chain, है ना? आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है क्या? 1 2 3 4. Yes, ये भी हो सकता है. Even this is an option, students. ठीक है, दोनों ऑप्शन है बिकॉज दोनों में मुझे 4 कार्बन मैक्सिमम मिल रहे हैं विदाउट टेकिंग अ रिवर्स टर्न. बिना रिवर्स गए 4 कार्बन मैक्सिमम मैं काउंट कर पा रहा हूं इस स्ट्रक्चर में. ओके, चलो मैं इसको कंसीडर करता हूं. चलो एनीवन यू कैन कंसीडर. सो ये जो बॉक्स के बाहर आ गया वो मेरा ब्रांच बन गया, है ना? ये मेरा ब्रांच बन गया. वापस करूं, एक और तरीके से करूं मैं आपके लिए. ये देखो, आप बोलोगे सर एंड पता लगाओ ना प्लीज. एंड. ओके, सो ये एक एंड है स्टूडेंट्स, ये दूसरा एंड है स्टूडेंट्स, एंड ये भी एक एंड है स्टूडेंट्स. देखो, चेक करो. डू यू ऑल एग्री? ये भी तो एक एंड है ना, है ना? तो आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है. जैसे ही 2 एंड से ज्यादा एंड्स आपको मिल गए, कंफर्म ब्रांच्ड. कंफर्म बात है, ब्रांच्ड. ओके, 2 से ज्यादा एंड मिल गया तो कंफर्म ब्रांच्ड है. चलो चेक करते हैं. 1 2 3 4. अगर मैं ऐसे जाता हूं तो आई हैव मिस्ड दिस कार्बन. मिस्ड हो गया, कंफर्म ब्रांच चेन है. यस, सपोज दर्शन बोलता है नहीं सर ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओ. 1 2 3 4. अरे ये भी तो सेम बात हो गई, वापस से ये मिस कर दिया हमने, है ना? रोहित बोलता है सर मेरे पास एक आइडिया है, ये ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है, मैं जानता हूं. ठीक है रोहित, बता कैसे? तो रोहित ने बोला सर ऐसे करो 1 2 3 4 एंड देन सर चोरी से रिटर्न आके ये वाला भी काउंट कर लो 5. ये कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? कैन आई डू दिस? कैन आई डू दिस? No. सो अगर मुझे ऐसे करने की जरूरत पड़ रही है मतलब कंफर्म इट इज अ स्ट्रेट चेन, राइट है? कंफर्म इट इज अ स्ट्रेट चेन. आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स मेरा? No, sir. No, it is a
इट इज अ ब्रांच Branch. चेन, है ना। मैंने आपको जानबूझ के क्या बोला, इट इज अ स्ट्रेट चेन, मैंने गलती की जानबूझ के, बट बहुत सारे लोगों ने उसको पकड़ा नहीं, बहुत सारे लोगों ने हाँ हाँ ऐसा मुंडी हिला दी। ओके चलो, सो स्टूडेंट्स आई कैन से कि दिस इज माय मेन चेन, ये मेरा मेन चेन है, एंड ये मेरा ब्रांच है। सो whenever I have a methyl branch, इसका नाम स्टूडेंट्स क्या है, इसका नाम है methyl. So whenever I have a methyl branch on 1, 2, 3, 4 on the second carbon, whenever I have one methyl branch, one methyl branch, one methyl branch on second carbon, compulsory second carbon students, okay Dhanashree, कंपल्सरी सेकेंड कार्बन पे ही होना चाहिए मिथाइल ब्रांच. इफ आई हैव वन मिथाइल ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन, आई विल यूज द प्रीफिक्स आइसो. ठीक है, कौन सा प्रीफिक्स यूज करूंगा, आइसो. एंड व्हाट विल बी नेम ऑफ अल्केन स्टूडेंट्स, बोलो मुझे क्या नेम आएगा अल्केन का, काउंट करो टोटल कार्बन. आइसोब्यूटेन. आइसोपेंटेन. टोटल कार्बन्स काउंट करने हैं, टोटल कार्बन्स, देयर आर टोटल 5 कार्बन स्टूडेंट्स. चेक करो, ब्रांच एंड एवरीथिंग सब कुछ काउंट कर लो, सब कुछ काउंट कर लो. आइसोपेंटेन. सबके सब अग्री कर रहे हो मेरे साथ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज. सर आइसोब्यूटेन क्यों नहीं आया, बिकॉज आपको ये भी कार्बन काउंट करना पड़ेगा, ब्रांच भी काउंट करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी कार्बन को छोड़ के नहीं जाना है, भूल नहीं जाना है. ठीक है, सबको काउंट कर लो. आइसोपेंटेन. इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इज दिस अंडरस्टूड. एक और आपको तरीका बताऊं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जो बुक्स भी फॉलो करते हैं. ये तो मेरा टेक्निक है, ये तो मेरा टेक्निक है आइसो पता लगाने का. बट बुक्स पता है क्या फॉलो करते हैं, बुक्स लोग बोलते हैं, बुक्स में क्या बोलते हैं पता है, बुक्स में बोलते हैं जहां भी आपको एंड में ये दिखाई दे, CH3 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 दिख रहा है आपको, ये देखो CH3 CH CH3 CH3 CH CH3. जब भी आपको एंड में ये दिखाई दे तो समझ जाओ इट इज एन आइसो कंपाउंड. क्या है ये, आइसो कंपाउंड. समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स. एंड में हमेशा दिखेगा, कार्बन चेन के एंड में, या इस एंड पे या इस एंड पे, किसी भी एक एंड पे. ठीक है, किसी भी एक एंड पे. चलो आप मुझे सोच के बताओ, can I call this compound as iso compound students? CH3 CH2 then CH3 CH3. Can I call this compound as iso compound? No, बताओ sir. मुझे. No. Can I call this as iso compound? बताओ students. No. फॉलो करो, सारे स्टेप्स फॉलो करो. फर्स्ट स्टेप, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. ब्रांच. ब्रांच है ना स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना है. देखो अगर आपको ऐसा टेंशन आ रहा है, अरे यार ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया यार, ये तो मुझे आएगा ही नहीं, शिट मुझे नहीं आएगा, मुझे मुझे केमिस्ट्री छोड़ देना है, अब मुझे केमिस्ट्री आ ही नहीं सकता, मुझे नेमिंग आ ही नहीं सकता, ऐसे टेंशन नहीं लेना है आपको. टेंशन लेना ही नहीं है आपको. आपको क्या करना है, सर ने बोला था स्टेप्स फॉलो करो आंसर आएगा, तो आई विल ट्रस्ट ऑन हिम, आई विल फॉलो ऑल द स्टेप्स, आंसर तो आना ही है कंफर्म. ठीक है, सो पहला स्टेप क्या है, स्ट्रेट और ब्रांच. व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट्स, स्टेट और ब्रांच बताओ मुझे आंसर क्या है, सबके सब बताओ. Branch. सबके सब बताओ. वेरी गुड, ब्रांच. शाबाश. ऐसे पार्टिसिपेट करना है आंसरिंग में. ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा. चलो ब्रांच है, दैट इज राइट आंसर. शाबाश, इट इज अ ब्रांच चेन. ठीक है, तो मैं आइसोपेंटेन को स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ. दिस इज आइसोपेंटेन. ठीक है, आइसोपेंटेन. ओके, और ये ब्रांच था अपना सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच, इसलिए आइसोपेंटेन आया. तो इस स्ट्रक्चर को अपन साइड में हटा देते हैं, स्ट्रक्चर को साइड में कर देते हैं. ठीक है, अब आते हैं येलो वाले पे फोकस करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज इट इज ब्रांच्ड. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये तो सॉल्व हो गया मामला, ये मामला अपना सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स. सेकंड पे जाता हूं मैं, सेकंड पे. ठीक है, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, टोटल कार्बन, स्टेप 2 5. 5. Very good. Step 2, there are 5 carbons. There are 5 carbons. So what is the name? It is pentane. ठीक है, क्या नेम आ गया, पेंटेन. नाउ चेक करते हैं आपका मेन चेन कौन सा है स्टूडेंट्स. मेन चेन चेक करो, लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल चेक करो. सो तीशा बोलेगी सर मैं, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो 3 एंड है, ये रहा एक एंड,
ये रहा दूसरा एंड, ये रहा तीसरा एंड। भूमि बोलेगी नहीं सर 4 4 एंड है, भूमि बोलेगी सर ये भी तो एक एंड है, चेक करो ये भी तो एक एंड है। कौन बताएगा भूमि राइट है कि तीसरा राइट है? 3 एंड्स है कि 4 एंड्स हैं स्टूडेंट्स? 3 एंड्स हैं कि 4 एंड्स हैं अपने पास, बताओ। 3. 3 है ना, वेरी गुड। ये वाला जो CH वो एंड क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? बिकॉज उसके आगे भी तो कार्बन्स हैं। हाउ कैन आई स्टॉप एट CH इफ आई स्टार्ट माय जर्नी फ्रॉम योर CH3 CH to CH? यहाँ क्या, आई कैन नॉट स्टॉप। व्हाई? बिकॉज आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लेफ्ट जा सकते हो या राइट जा सकते हो। सो यू हैव ऑप्शंस, यू कैन नॉट स्टॉप ओवर हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट स्टॉप ओवर हियर। सो देयरफॉर मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं मेरा मेन चेन ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक करो स्टूडेंट्स। अब मैं मेरा मेन चेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। 1 2 3 and 4, ये देखो स्टूडेंट्स, ये है मेरा मेन चेन। चेक करो, एक और मेन चेन बन सकता था, ये भी एक ऑप्शन है स्टूडेंट्स। 1 2 3 and 4, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी राइट है, आप रॉन्ग नहीं हो। दोनों चेन में मैक्सिमम 4 कार्बन आपके आ रहे हैं, है ना? करेक्ट हो गई बात, करेक्ट हो गई बात स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? यहां तक एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? नो कंफ्यूजन? बताओ मुझे, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज टेल मी। वेरी गुड रोहित, शाबाश। चलो ये ड्रॉ कर लिया मैंने। आपको कोई एक चेन सिलेक्ट करना है, लेकिन दोनों तो सेम है ना, दोनों 4 4 कार्बन वाले हैं, तो मैं कोई एक सिलेक्ट करूंगा। चलो मेरी मर्जी, मैं ब्लू वाला सिलेक्ट कर लूंगा, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, तो मैं रेड को हटा देता हूं। अब जो भी कार्बन ब्रांच बॉक्स के बाहर है वो क्या है मेरा? जो भी कार्बन बॉक्स के बाहर है, ब्रांच। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट मी सर्कल द ब्रांच। सर्कल कर दिया मैंने। इस ब्रांच का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मिथाइल ब्रांच। वेरी गुड, मिथाइल। वेरी गुड, वेरी गुड, मिथाइल ब्रांच। नाउ टेल मी, इज इट ऑन सेकेंड कार्बन? इज इट ऑन सेकेंड कार्बन स्टूडेंट्स? तो मानसवी बोलेगी, Yes. मानसवी बोलेगी कि नहीं नहीं ये तो थर्ड कार्बन पे है। देखो मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ, 1 2 3, ये तो थर्ड कार्बन पे है ना? ये थोड़ी सेकंड कार्बन पे है। तो श्रेयस क्या बोलेगा? श्रेयस बोलेगा सर ने बोला था किसी भी एंड से सेकंड कार्बन पे हो सकता है। तो श्रेयस क्या बोलेगा? श्रेयस बोलेगा मानसवी लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड पे है, करेक्ट है, बट मानसवी अगर राइट हैंड साइड से जाए तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे ही है ब्रांच। राइट है स्टूडेंट्स? राइट है स्टूडेंट्स? एनी एंड से सेकेंड कार्बन पे अगर आ जाए तो वो हम उसको ले लेंगे आइसो। डू यू ऑल एग्री? सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच, ऐसे भी बोल सकते हो आप। समझ में आया धनुश्री? समझ में आ रहा है धनुश्री? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. ओके, शाबाश। एवरीवन एंजॉयिंग? किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है? किसी को चक्कर आ रहा है? हो, बहुत बेकार बेकार टॉपिक है ये, मैंने क्या कर दिया? आइसो नियो, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बाप रे। ऐसे सब टॉपिक है कि मुझे लेक्चर बाद ना आना पड़ेगा। आई फील वेरी इम्प्योर नाउ। ऐसा लग रहा है किसी को? नहीं, ओके, एंजॉयिंग, एवरीवन इज एंजॉयिंग, वेरी वेरी गुड। देखो आपको, आप तभी मजा आएगा आपको जब आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है? और कैसा होता है, इट इज वेरी नेचुरल, ठीक है? इट इज वेरी नेचुरल कि इनिशियली व्हेन यू डोंट नो समबडी, जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको अभी इतने अच्छे से नहीं जानता, आप भी मुझे नहीं जानते, तो बहुत बार कैसा होता है कि अगर सपोज धनश्री के मन में कोई डाउट है, सो धनश्री सोचे कि पूछो कि नहीं पूछो, पूछो कि नहीं पूछो, पूछो कि नहीं, जानते जानते जानते, आई नॉट आस्क, जानते। अगर पूछ लिया और सर ने बोला कि क्या सिंपल टॉपिक पूछ रही है यार, ये तो मैंने तुझे पढ़ाया ना, इतना भी नहीं आता है क्या? सो धनश्री सपोज ये सोच के चुप हो जाएगी, नहीं मैं नहीं पूछूंगी, जानते। अगर धनश्री का नसीब अच्छा रहा ना, तो सेम डाउट सौम्या के मन में भी आ जाएगा, एंड सौम्या ने डाउट पूछ लिया, चलो सर मुझे एक डाउट है, ऐसा क्यों नहीं है? धनश्री बोलेगी वाह अच्छा हुआ इसने पूछ लिया यार, सेम मेरा डाउट था, सेम। तो वहां तो बच गई। लेकिन अगर धनश्री का नसीब अच्छा नहीं हुआ, किसी ने उसका डाउट पूछा ही नहीं, सो धनश्री कैसे क्या बोली लेक्चर बात में, सी यार कितने बैड फ्रेंड्स यार, मेरे बैचमेट्स कितने बेकार हैं, किसी ने भी मेरा डाउट नहीं पूछा।
सर को भी यार, सच में यार, सर को समझ में नहीं आता, सर ने मेरा डाउट अटेंड ही नहीं किया। तो इसमें क्या हो गया, धनुश्री ने तो डाउट बताया ही नहीं ना, तो उसके बैचमेट्स की गलती है क्या, अब्दुल्ला की गलती है क्या, तिशा की गलती है क्या, मानसवी की गलती है क्या, भूमि की गलती है क्या? नहीं, धनुश्री ने बताया ही नहीं ना उसको डाउट क्या था, और ना ही धनुश्री ने मुझे बताया, सो मुझे कैसे समझेगा डाउट क्या है? अंडरस्टूड? सो अगर आपको ना समझे तो आपको डाउट मुझे बताना है, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं, सो दैट देन धनुश्री विल एंजॉय, यस यस मेरे को आता है, सब आता है सर, आप क्वेश्चन पूछो, आई विल आंसर यू। दैट इज हाउ योर एटीट्यूड शुड बी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने धनुश्री का जस्ट एग्जांपल लिया, शी इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज आंसरिंग प्रॉपर्ली and she is conveying her thoughts properly, which is very good. So सबके सब ऐसे होना है, सबको ऐसे होना है, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड कार्बन पे आई कैन सी वन मिथाइल ब्रांच, सेकंड कार्बन पे आई कैन सी वन मिथाइल ब्रांच, सेकंड कार्बन पे आई कैन सी वन मिथाइल ब्रांच। देयरफॉर सौम्य आप बता, देयरफॉर कैन आई यूज आइसो नाउ, कैन आई यूज आइसो नाउ? Yes, sir. Yes. So name will be isopentane. Name will be isopentane. Is that clear, students? Is that clear? Is that clear? Yes, sir. चलो, Yes. ये तो हमने अपना टेक्निक लगा लिया है ना। अब बुक का टेक्निक देख लें एक बार, बुक की टेक्निक देख लें एक बार। आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, if you want you can take a screenshot. Okay, you can write this in your book also later on. So दोनों isopentane स्ट्रक्चर, दोनों चेक करो स्टूडेंट्स, both the structures are isopentane, बट दोनों दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं आपको। आप बोलोगे यार ये दोनों अलग अलग कैसे दिख रहे हैं यार, बस स्ट्रक्चर सेम है। कुछ अलग अलग नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ भी अलग अलग नहीं है, खाली दो अलग अलग एंड है बस, और कुछ नहीं, ठीक है? ओके, टेक्स्ट बुक का अगर टेक्स्ट बुक के तरीके से जाऊं स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे देखना है, ये देखो, किसी भी एक एंड पे आई शुड सी CS3 CS3 दिख रहा है क्या, चेक करो, CS3 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 CS3। फास्ट फास्ट बोलने आता है सबको, प्रैक्टिस किया ना आदित्य? CS3 CS3, हाँ सर। हाँ बोल। C3 वाह क्या बात है। सोहम? ये ऐसा नहीं है, तो आधा माइक ऑन करने के पहले बोल दिया, खाली CH माइक ऑन करने के बाद बोला, फिर माइक म्यूट करके फिर CS3 बोला, समझ में नहीं आया क्या क्या बोला तूने? ओके चलो, लेट अस गो स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। सो आइसो तो समझ में आ गया मुझे, सबको समझ में आ गया आइसो क्या है? एक और एग्जांपल दे दूं आइसो का, सॉल्व करोगे? एक और एग्जांपल दे दूं आइसो का स्टूडेंट्स? हाँ ये सर। सबको आएगा, डोंट वरी, इसका आंसर सबको आ जाएगा। चलो सॉल्व करो स्टूडेंट्स, सॉल्व करो। किसी को अगर डाउट है कुछ या आंसर आ गया है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजोगे, ठीक है? चलो स्टार्ट, स्टार्ट स्टेप वाइज मैनर में, ठीक है? स्टेप वाइज मैनर में स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज मैनर, कंफर्म आंसर आएगा, कंफर्म आंसर आएगा। स्टेप 1, मैं आपको आंसर नहीं बोलूंगा, खाली क्वेश्चन पूछूंगा बार बार। स्टेप 1, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, चेक करो आपका आंसर क्या है। आपको आंसर बोलना नहीं, आपको आंसर बोलना नहीं, आंसर बोलना नहीं है, आपको आंसर लिखना है बुक में, ठीक है? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। सो आई होप यू हैव गिवन द आंसर। स्टेप 2, how many total carbons are there? Total carbons, total carbons, total carbons, total carbons, ब्रांच कार्बन, स्ट्रेट कार्बन, सबको काउंट कर लो, पूरा कचरा एक साथ काउंट कर लेना है। डोंट हैव टू गिव मी आंसर, यू हैव टू राइट योर आंसर इन द नोटबुक स्टूडेंट्स। कार्बन काउंट कर लिया मैंने, वेरी गुड। चलो लेट्स गो टू द प्रीफिक्स नाउ स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स पे जाते हैं। स्ट्रेट चेन होगा तो N लिख दूंगा, अगर मिथाइल ब्रांच होगा तो आइसो लिख दूंगा। लेकिन राज की बात क्या है, राज की बात क्या है? आइसो कब लिखेंगे? तिशा टेल मी, आइसो कब लिखेंगे? When methyl is on second Shabash, carbon. when methyl branch is there on the second carbon, methyl branch is there on the second carbon, which is my main chain, 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 main chain बना दिया। मिथाइल ब्रांच का है, मिथाइल ब्रांच का है, मिथाइल ब्रांच का है, मिथाइल ब्रांच यहाँ है। वाओ, इट इज ऑन सेकंड कार्बन, है ना? आई कैन यूज आइसो, करेक्ट है स्टूडेंट्स? वी कैन यूज आइसो, वी कैन यूज आइसो। नहीं यूज कर No, सकते sir. तीसरा? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है तीसरा यहाँ पे, क्या It प्रॉब्लम is है? on the third carbon. इट इज ऑन द थर्ड कार्बन। सो मैं क्या यूज करूं थर्ड कार्बन के लिए? कोई रूल बताया है सर ने? कोई रूल बताया टेक्स्ट बुक ने कॉमन नेमिंग के लिए? कोई रूल बताया है हमने? कोई भी रूल नहीं बताया। सो आप क्या बोलोगे? नो कॉमन नेम, है ना? बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार बताते हैं, उनको मैं पूछता हूँ कि कॉमन नेम है क्या घर पे?
आदित्य का कॉमन नेम है क्या घर पे? आदित्य बोलता है नहीं, मुझे आदित्य ही बुलाते, मेरे पास कॉमन नेम ही है, प्लीज डू नॉट यूज मी इन माय लेक्चर्स, ओके? देन मैंने पूछा सोम को, सोम कॉमन नेम? सोम ने No, बोला sir. नो कॉमन नेम, है ना? अब्दुल्ला कॉमन नेम? अब्दुल्ला बोलता है नहीं नहीं नो कॉमन नेम। रोहित कॉमन नेम? रोहित बोलता है नो नो कॉमन नेम। हिटमैन मुझे अच्छा लगता है बट मुझे वो लोग बुलाते नहीं, हिटमैन नहीं बुलाते, रोहित शर्मा को बुलाते हिटमैन। ओके, सो रोहित का भी कॉमन नेम नहीं है ना? सो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके कॉमन नेम नहीं है स्टूडेंट्स। कॉमन नेम हर एक कंपाउंड का होना जरूरी नहीं है, इसका कॉमन नेम नहीं है। सबको समझ में आ गई बात? चलो अब नाउ एवरीवन विल रेज योर हैंड इफ यू हैव लेबल्ड दिस एज आइसोहेक्सेन। कितने लोगों ने इसको आइसोहेक्सेन नाम दे दिया? हाथ ऊपर करो, चलो बताओ मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू गेव दिस नेम आइसोहेक्सेन? कोई टेंशन नहीं लेना है, ऐसे शर्माना नहीं है कि मिस्टेक हो गया। मिस्टेक जब एक्सेप्ट करोगे तभी आपको उसका करेक्ट आंसर आएगा। यस ऋत्विक, ऋत्विक ने मिस्टेक कर दिया, श्रेयस ने मिस्टेक कर दिया, रोहित ने मिस्टेक कर दिया। अब ये लोग अगली बार मिस्टेक नहीं करेंगे कंफर्म, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि गलती कहाँ पे है ना। गलती आपको समझ में आ गई तो आप अगली बार मिस्टेक नहीं करोगे। आई होप यू हैव रिटन दिस इंस्ट्रक्शन इन योर बुक आल्सो स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग वे, है ना? जो गलत रास्ता है उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे ना, तभी सही रास्ते पे जाओगे। ठीक है? जब आपने कभी आपके घर के अलावा आपके बाजू वाले घर का बेल मार दिया कभी? रात को घर पे आके उसका बाजू वाले घर का बेल मार दिया और अंदर घुस गए, हाँ मम्मी खाना दे दो, तो बाजू वाले क्या बोलेंगे? अबे मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, बाजू में जा, ये गलत घर है। आपको समझा? ओ हो दिस इज रॉन्ग हाउस, आई एम सो सॉरी। अगली बार आप वही मिस्टेक करोगे क्या? नहीं, इनफैक्ट आप पहली बार भी नहीं करोगे, तो आपको सही रास्ता पता चल गया। सो इसी तरह से जो गलत रास्ता है वो आपको अगर समझ गया तो आपको सही वाला आइडेंटिफाई कर पाओगे। So it is very important to write down the structures which are wrong, in which you have done mistakes. उनको भी ड्रॉ करो जरूर, उनको भी लिखो। Now I'm coming to the neo students. Last option पे आ रहा हूँ। Prefix neo कब यूज करूंगा मैं? neo, neo I will use when second carbon has not one but two methyl branches. एक नहीं दो दो मिथाइल ब्रांचेस रहेंगे ना तो हम यूज करेंगे नियो। चेक करो, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है एंड सेकेंड कार्बन पे आई हैव टू मिथाइल ब्रांचेस स्टूडेंट्स, टू मिथाइल ब्रांचेस। ठीक है, तो ये भी ब्रांच अल्केन में आ गया। सो स्टेप नंबर 1, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। आंसर बोलोगे ब्रांच चेन सर। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स कितने कार्बन से बताओ जल्दी? 7. 7 is right answer. So which alkane is this? 15. Heptane. Heptane. Shabash. Heptane. Very well done students. Heptane. Okay. Heptane लिख दिया मैंने. Neoheptane. Why neoheptane? Second carbon has two methyl branches. Okay students, again second carbon के लिए रूल बन गया. ठीक है, सो neoheptane आप लिख दोगे. That's it. That's it. सेकेंड भी हो सकता है सर, सेकेंड लास्ट भी हो सकता है। अक्षत ने बोला सर सेकेंड लास्ट भी हो सकता है, राइट? मैंने बोला हाँ सेकेंड लास्ट भी हो सकता है, खाली सेकेंड नहीं, किसी भी एंड से सेकेंड कार्बन, किसी भी एंड से सेकेंड कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर ले अपन। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, पहले एक फ्लो चार्ट बना के देता हूँ। तो आप जो आपने 3 स्टेप्स जहां पे लिखे ना स्टूडेंट्स, जब आप अपने नोट्स में 3 स्टेप्स लिखोगे, उन 3 स्टेप्स के बाद ये 4th वाला फ्लो चार्ट बनाना पहले, एंड देन स्टार्ट टेकिंग अप द एग्जांपल्स। ठीक है, ये फ्लो चार्ट क्या है? दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू डिसाइड द प्रीफिक्स। ओके, सो डिसाइडिंग प्रीफिक्स समझ में आया? जहां पे आपने 3 स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसी के नीचे ये फ्लो चार्ट आप लिख दोगे, डिसाइडिंग प्रीफिक्स। समझा? स्टेप 3 के बाद ये फ्लो चार्ट आएगा। सो प्रीफिक्स कैसे डिसाइड करेंगे? चेक करो, इफ इट इज अ स्ट्रेट चेन, अगर स्ट्रेट चेन है तो हम क्या बोलेंगे, और अगर ब्रांच चेन है तो हम क्या बोलेंगे? सो स्ट्रेट चेन के लिए हम बोलेंगे स्मॉल लेटर n, प्रीफिक्स n हो जाएगा अपना। एंड इफ इट इज ब्रांच चेन स्टूडेंट्स, देन 2 ऑप्शंस आ जाएंगे अपने पास। पहला ऑप्शन है आइसो, सेकेंड ऑप्शन है नियो। आइसो कब यूज करेंगे स्टूडेंट्स? आइसो में यूज करूंगा, आइसो में यूज करूंगा इफ सेकेंड कार्बन, ये देखो मैं ऐसे लिखता हूं, सेकेंड कार्बन, सेकेंड सी दिख रहा है आपको? सेकेंड सी मतलब क्या? सेकेंड कार्बन, इफ सेकेंड कार्बन हैज, इफ सेकेंड कार्बन हैज 1 मिथाइल ब्रांच,
then I will use iso. Okay, Akshat? समझ में आ रहा है अक्षत? समझ में आ रहा है? If second carbon हाँ. has one methyl branch, we will use iso. Next, आप फुल फॉर्म लिखो, आप खाली सेकंड सी मत लिखो, आप पूरा लिखो सेकंड कार्बन। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं लिया, सेकंड सी लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखो पूरा। न्यू कब यूज करेंगे स्टूडेंट्स? व्हेन सेकंड कार्बन फ्रॉम एनी एंड, ठीक है, फ्रॉम एनी एंड, दैट आल्सो यू कैन इंक्लूड। व्हेन सेकंड कार्बन हैज नॉट one but two methyl groups, CH3 and CH3, two methyl groups, then I will use new. Is this understood, Dhanashree? Dhanashree, clear है ये? Yes, sir. Very good. Shabash. What about others? Kavya, what about you? Rishi, Sunara? Rishi, Yes, sir. everything clear up till now? Yes, sir. Very good, very good. चलो students, चलो ये flowchart बना लिया। Now what I'll do is I'll give you few structures. आप ये सारे structures आपके बुक में draw करोगे। I'll give you time of 5 minutes. You will give me names of these structures, ठीक है? And then मैं आपको सिखाऊंगा नाम से structure कैसे बनाना है। पहले आप structure से नाम बनाओ, then उल्टा करेंगे नाम से structure, and then we will go to IUPAC, ठीक है? इसके बाद अपन IUPAC में entry मारेंगे। Okay, चलो let us begin. So I'll mute my mic. मैं mic mute कर रहा हूँ students. Okay, and I'll pause the video also, recording में मैं pause कर दूंगा, जैसे structure बना लेता हूँ, फिर I'll resume the recording. Okay, in the meanwhile you can ask me your doubts, don't worry about it. आप doubts मुझे पूछ सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है? और else ठीक है, video pause करने की जरूरत नहीं है. Quickly I'll write down the structures. मैं structures बनाऊंगा, you have to copy these structures and you have to give me common name, students. Remember, common name, IUPAC नहीं देना है, common name देना है, हम common naming कर रहे हैं. चलो, so first structure is this. CH3, CH2, CH2, every H is capital, okay students? आपको लगे कि small लिखा है मैंने तो small नहीं लिखा है, आपको ऐसा दिखता होगा, it is capital, ठीक है? CH3, this is my first structure, then the second one. CH3, 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 CH3. Then the third one, CH3, CH2, 3 times CH3. Then fourth structure, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. Then fifth structure, CH3, CH2, CH3, CH and CH3. Sixth structure, students. CH3, CH2, CH3, CH3, CH2 and CH3. ठीक है? That's it. These are my 6 structures. I'll give you 6 minutes overall. 6 minutes. Every structure you'll get 1 minute only. Follow all the steps. अगर आपने steps follow नहीं किया जैसे मैंने सिखाया है, confirm mistake हो जाएगा. It is my guarantee. It is my guarantee. Confirm mistake हो जाएगा. ठीक है? Follow all the steps. You have to raise your hand once you are done, students. Raise your hand once you are done.
Let us solve these structures now one by one. Okay, so first structure, who will help me? Raise your hand, who will help me with the first structure? Yes, Abdullah. Abdullah Khan, go ahead. फर्स्ट स्ट्रक्चर बताना है अब्दुल्ला. फर्स्ट स्ट्रक्चर का आंसर बताना है, स्टेप वाइज सॉल्व करना है. ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है. क्या आंसर आएगा? स्ट्रेट. यस, वेरी गुड. फर्स्ट आंसर इज स्ट्रेट चेन है, करेक्ट है. सेकंड स्टेप ब्यूटेन. ब्यूटेन, वेरी गुड. थर्ड स्टेप क्या आएगा? नियो. नियो, पहले वाले स्ट्रक्चर के लिए नियो. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रेट चेन, इट इज नॉट अ ब्रांच चेन. नियो कब आएगा? व्हेन इट इज अ ब्रांच चेन, है ना. फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट चेन. एन. It is N. Very good. It is N. N. So first answer is students N-butane. N-butane. Okay, I hope you've got this correct. All of you. इसका आंसर है N-butane. मैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया इसका नाम. You can go through the name also. N-butane, students. N-butane. Okay. Second structure. Mitesh will tell me. Yes, Mitesh. Second structure. Mitesh, second structure. Can you hear me, Mitesh? Okay, Darshan Salunke, second structure. Yes, Mitesh, your mic is off. That is what I'm saying. Okay, can't open. Okay, no problem. Yes, Darshan. Okay, no response. Rohit, you tell me. Rohit D nahi, just Rohit. Yes, ब्रांच चेन. वेरी गुड. फर्स्ट आंसर है ब्रांच है, शाबाश. सेकंड स्टेप का आंसर क्या है? सेकंड स्टेप नंबर ऑफ कार्बन्स. कितने Three. कार्बन्स हैं? 5 कार्बन्स. 5. वेरी गुड. तो कौन सा अल्केन होगा? पेंटेन. पेंटेन, वेरी गुड. नेक्स्ट, थर्ड स्टेप कौन सा प्रीफिक्स यूज करेगा? नियो. नियो इज राइट, वेरी गुड. सो इसका आंसर आ जाएगा नियो पेंटेन. करेक्ट है रोहित? यस सर. क्या आंसर है इसका? नियो पेंटेन. नियो पेंटेन, वेरी वेल डन. सो ये रहा straight chain, students. Now I have two branches over here. Therefore, it will be labeled as neopentane. Very well done, Rohit. Very well done. So let me write down the name over here. Neopentane. Okay, neopentane. This is the name, students. Let us go to third structure now. Third structure. Okay, who will help me with the third structure? Manasvi Patil, tell me. Manasvi Patil, third structure. Yes, Manasvi. Third structure. Okay, Rishi, tell me third structure, Rishi. Yes, students. Acha, Soumya Gala, third structure. N-pentane. Sorry? N-pentane. N-pentane is right answer. Very good. If I have written CH2 3 times, इसका मतलब क्या हुआ? ये same CH2 3 बार आपको repeat करना है. So this is how you had to actually draw this, है ना? ये structure आपको इस तरह से, ये देखो, पहले मैं नाम लिख देता हूँ. जो सौम्य ने बोला वो नाम पहले लिख देते हैं. चलो. So answer is N-pentane, by the way. Okay, answer is N-pentane.
इसका आंसर एन पेंटेन आएगा। कैसे एन पेंटेन आया, अगर आपको डाउट है स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ यू हैड टू एक्चुअली अप्रोच इट। ओके, CH2 जो मैंने ब्रैकेट में 3 लिखा था, तो उसको आपको इस तरह से एक्चुअली लिखना होगा, CH3 3 टाइम्स CH2, CH2 CH2 CH2, ये देखो ये 3 टाइम्स CH2 हो गया, एंड देन लास्ट में यू हैड CH3। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये देखो ये मैंने 3 बार CH2 ली थी। So this is N-pentane. Very well done. Very well done, Soumya. शाबाश। Okay, fourth structure का आंसर मुझे देगा अक्षत। Yes, अक्षत। Fourth structure. Straight, pentane and pentane. Very good. Straight pentane, prefix will be N, so answer will be N-pentane. This is straight chain, students. Check करो. This is straight chain. So answer is N-pentane. Very well done. N-pentane. Fifth structure, Aditya will tell me the answer. Fifth structure. Yes, Aditya. The fifth structure is isopentane. Isopentane. Very well done. I have methyl branch on the second carbon from the right hand side. Second last carbon, yeah, second carbon you can say has a methyl branch. So the name will be isopentane. Shabash. Next, last structure का आंसर देना है। कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा इसका? Raise your hand if you know the answer for the last structure. Let me see how many of you have answered this. Last structure का नाम कौन देगा? रोहित D. Yes, Rohit D. Tell me. branch chain. Branch chain is Heptane. correct answer. Very good. Second. Step Heptane. 2. Step 2 is heptane. Yes, that is also right. And last one is isoheptane. Sorry, which prefix? Isoheptane. Iso is wrong. Iso is wrong. रोहित पहले मेन चेन पता लगा, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, रोहित पता लगा लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, चेक कर लॉन्गेस्ट चेन, चेक कर रोहित। ये देख, ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन है क्या? 1 2 3 4, चेक कर, इज दिस लॉन्गेस्ट चेन? ये अपने पास एक ऑप्शन है, राइट है ना रोहित? ये अपने पास एक ऑप्शन है, करेक्ट है? Yes. चेक करते हैं, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। चल 1 2 3 4, ये भी एक ऑप्शन है, देखो इसमें भी 4 आ रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए। कोई और ऑप्शन है क्या हमारे पास? चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, ये चेक कर रोहित, 5 कार्बन, तो ये तो ज्यादा हो गया है ना? सो मैं येलो वाला ग्रीन वाला भूल जाऊं, ब्लू वाले को मैं याद रखूं। ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, समझा रोहित? ओके, मैं लॉन्गेस्ट चेन पता लगाने का, ब्रांच से तो पहले लॉन्गेस्ट चेन पता लगा लो स्टूडेंट्स। ऑलराइट, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड लॉन्गेस्ट चेन, now you go and encircle the branches. Branches को encircle करो। So 1 and 2, 1 and 2, these are my branches. कौन से कार्बन नंबर पे हैं ब्रांचेस स्टूडेंट्स? चेक करो, कौन से कार्बन नंबर पे ब्रांचेस हैं, चेक करो। थर्ड कार्बन, वेरी गुड, थर्ड कार्बन पे, राइट? 1 2 3, थर्ड कार्बन पे ब्रांचेस हैं। थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन के लिए हमारे पास कोई रूल है क्या? प्लीज टेल मी रोहित। No name. No common name. नो कॉमन नेम, क्या आंसर आएगा? नो कॉमन नेम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नो कॉमन नेम। चलो, दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नो कॉमन नेम। आई राइट ओवर हियर, नो कॉमन name. Okay, now you can take a screenshot. So आपके आंसर्स भी बन गए। You will repeat the same structure in the homework also students. होमवर्क में भी ये सेम स्ट्रक्चर ट्राई करो बनाने की, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। होमवर्क में हमेशा क्या करने का, जो हमने स्ट्रक्चर्स लेक्चर्स में डिस्कस किए वो स्ट्रक्चर भी बनाने का, जो मैं होमवर्क दूंगा वो भी बनाना, ठीक है? रिपीटेशन करने का ऑलवेज। चलो, डन। Now we will go the other way. Now I'll give you names, you have to draw the structures. Okay, चलो स्टार्ट करें। So पहले आप ट्राई करो, then I'll help you, don't worry. पहले आप ट्राई करो, I'll give you few structures, you try to draw the structures. Then आपने एक बार अप्रोच कोई तो एक ले गए, आप कुछ मिस्टेक करोगे, and then I will make
you correct your mistakes. ठीक है? First, let me see how you approach these questions. First structure is N-hexane. N-hexane. Next is neoheptane. Third is isobutane. And then fourth is isononane. Chalo, these are four structures we have to draw. These are the four structures which you have to draw. One by one I will also draw these structures. मैं भी आपको सिखाऊंगा, पहले आप try कर लो. चलो. Yes, students, should we start now? चलो start करें. How to draw N-hexane? ठीक है? How should I draw N-hexane? बहुत simple है. ये देखो. Whenever students, जब भी मैं आपको नाम दूंगा ना, आपको structure बनाने पड़ेंगे. ठीक है? Whenever I'm asking to draw structure, if I give you name, yes. If I ask you to draw structures, always you have to remember कि कभी भी आपको hydrogens नहीं बनाने हैं पहले. Never ever you should add hydrogens. This is how you should approach. ये देखो. First structure क्या है? Hexane. Hexane means how many carbons, students? How many carbons? 6 carbons. Correct answer. And by this prefix N, what can I identify? It's a straight chain. It's a straight chain. Very good. So I should have all 6 carbons in a straight chain. Correct. Let me draw the carbons first. So carbon, then carbon, then carbon, then carbon, then carbon. I don't have space, so I'll go upwards. Carbon. It is still a straight chain, right or wrong? This is still a straight chain. अगर मैं ऊपर लिखूं तो भी straight chain ही है ये. 6 carbons draw कर दिए मैंने. चलो. Is it N? Yes, it is N. Now I'll start putting hydrogens. Correct, students? अब मैं hydrogens डालूंगा, तो अब मेरा mistake नहीं होगा. ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कैसे मिस्टेक होता है, वो भी सिखाऊंगा. अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर मैं तो हाइड्रोजन साथ साथ में डालते रहूंगा तो भी मेरा मिस्टेक नहीं होगा, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, स्टिल आई एडवाइज यू डू नॉट फॉलो दैट. कंफर्म मिस्टेक हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंफर्म मिस्टेक हो जाएगा. 2-3 months के बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन दैट पैटर्न, तब मिस्टेक नहीं होगा. बट अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है, मिस्टेक हो ही जाएगा. ठीक है? सो स्टार्ट पुटिंग हाइड्रोजन्स नाउ. कैसे हाइड्रोजन डालेंगे? अपन कैसे डालेंगे हाइड्रोजन्स? यू हैव टू काउंट द बॉन्ड्स. हर कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. एवरी कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स ओवरऑल. ठीक है? एवरी कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स ओवरऑल. एंड वो चारों बॉन्ड्स अपन कैसे लिखेंगे? हाउ आई विल राइट ऑल दिस 4 बॉन्ड्स स्टूडेंट्स? चारों बॉन्ड्स कैसे लिखूंगा मैं? अगर एक ही बॉन्ड है तो उस बॉन्ड, अगर एक ही बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड के बदले एक ही बॉन्ड है तो मैं बाकी हाइड्रोजन से पूरा कर दूंगा. ठीक है? I'll complete all the remaining bonds with the help of hydrogens. So I have just 1 bond over here. So in place of the other 3 bonds, I'll write 3 hydrogens. ये देखो, ऐसे मैं लिख दूंगा. Okay, then second carbon के पास मुझे already कितने bonds दिख रहे हैं? 1 and 2. So second carbon should get just 2 more hydrogens. तो total complete हो गया 4 bonds. समझ में आ रही है बात? Yes students, बात समझ में आ रही है? कैसे मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ, समझ रहा है? Depending on the tetravalency of carbon. ठीक है? Similarly, CH2, 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 CH3. Okay? Is this clear, students? Is this clear? Yes, sir. शाबाश. So this is N-hexane. चेक करो आपका स्ट्रक्चर राइट है क्या? चेक करो. Have you got this correct? Now N is very simple to draw. N-hexane तो काफी अच्छे से आप आराम से बना लोगे. मिस्टेक कहाँ होगा मैं आपको समझाता हूँ. देखो ये तो N-hexane हो गया मेरा. ठीक है? N बनाना बहुत सिंपल होता है. मिस्टेक हो जाता है आइसो के केस में. आइसो नियो के केस में मिस्टेक होगा, कंफर्म मिस्टेक्स होंगे. चेक करते हैं. चलो. So now I'll draw neoheptane. सेकेंड स्ट्रक्चर पे मैं आ रहा हूँ स्टूडेंट्स. आई एम कमिंग टू सेकेंड स्ट्रक्चर नाउ. ठीक है? I'll come to second structure now. Second structure is neoheptane. So how should I approach for neoheptane students? सबसे पहले I will draw neo. Neo structure में कैसे draw करूंगा? Just carbon. No hydrogens, only carbon. Then
next carbon. What do I mean by neo, students? जब भी नियो है और आइसो मिले आपको तो पहले नियो और आइसो सेटिस्फाई करो. चलो, सो नियो मतलब क्या? टेल मी व्हेन आई यूज नियो. बोलो स्टूडेंट्स, नियो मतलब क्या? 2 methyl branch on carbon atom. 2 methyl branches on the second carbon. Very good. So this is my first carbon, then I have my second carbon. मैंने 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए. Second carbon पे I will immediately put 2 methyl groups. ये देखो स्टूडेंट्स. तो मैंने नियो कंडीशंस फुलफिल कर दिया. मेरा नियो कंडीशन फुलफिल हो गया, तो मैं टिक मार्क कर दूंगा ऐसे पेंसिल से नाम पे जाके. ठीक है, नियो कंडीशन मैंने फुलफिल कर दिया. नाउ आई विल कम टू हेप्टेन पार्ट. हेप्टेन पार्ट पे आता हूं स्टूडेंट्स. हेप्टेन मींस हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 7 carbon. 7. वेरी गुड. टोटल 7 होना चाहिए. कितने कार्बन अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमको? ऑलरेडी वी हैव 4 कार्बन्स. So how many more carbons should I draw, students? How many? और कितने कार्बन ड्रॉ 3. करूं मैं? 3. 1, then 2, and then 3. Understood? That's it. अब चेक करो, नियो हो रहा है? हाँ हो रहा है. सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांचेस आ गए तो नियो तो हो गया मेरा. हेप्टेन हो रहा है क्या? कितने कार्बन? 7 दिख रहे हैं क्या मुझे? हाँ दिख रहे हैं. सो हेप्टेन भी हो गया. लास्ट में क्या करना है मुझे? हाइड्रोजन डालने. चलो स्टार्ट पुटिंग हाइड्रोजन नाउ. CH3, CH2, CH2, CH3. That's it, students. यहाँ पे H नहीं डालना है. इस कार्बन पे H नहीं आएगा. ठीक है, इस कार्बन पे H नहीं आएगा बिकॉज की वैलेंसी हो गई ऑलरेडी. चलो, दिस इज द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स. प्लीज चेक. करेक्ट मिला आपको? करेक्ट आ गया ये स्ट्रक्चर आपका या मिस्टेक हो गया? क्या मिस्टेक हुआ? प्लीज शेयर द मिस्टेक विथ मी. मुझे बताओ अगर आपका मिस्टेक हुआ तो क्या मिस्टेक हुआ है. आई वांट टू नो क्या मिस्टेक हुआ है. यस स्टूडेंट्स, सबका करेक्ट गया, किसी का मिस्टेक नहीं हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता. Sir, I added hydrogen atom with carbon. सेकेंड कार्बन. ओके, Yeah. वेरी गुड. रोहित ने भी सेम मिस्टेक किया. CH2 लिख दिया सेकेंड कार्बन पे. और किसने सेम मिस्टेक किया है? करेक्ट है, श्रेया सावंत का करेक्ट है. ओके, वेरी गुड. ठीक है, ठीक है. लेट अस गो टू आइसो स्टूडेंट्स नाउ. ठीक है, सो इसका मैंने नाम लिख दिया नियोहेप्टेन. इसका नाम क्या है? नियोहेप्टेन. ओके, नियोहेप्टेन. I'll go to next structure now, students. दूसरे स्ट्रक्चर पे जाता हूँ. चलो, सेम अप्रोच करेंगे. ठीक है, नाउ यू विल हेल्प मी. चलो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आइसोब्यूटेन. सो फर्स्ट थिंग आई शुड बी कंसर्न्ड अबाउट प्रीफिक्स नाउ, है ना. पहले आइसो को पूरा करेंगे. चलो, तो आइसो मतलब क्या स्टूडेंट? सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल, है ना. सो 1, देन 2, कुछ भी हाइड्रोजन कुछ भी नहीं डाला मैंने. क्या करूंगा? सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल, पूरा मिथाइल बना दूंगा. CH3 पूरा, खाली कार्बन नहीं, CH3 पूरा लिख दिया मैंने. ओके, नाउ आई विल कम टू ब्यूटेन पार्ट. ब्यूटेन मींस हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर टोटल? 4. अब तो ऑलरेडी स्क्रीन पे मेरे कितने कार्बन्स आ गए स्टूडेंट्स? ऑलरेडी 3 आ गए. दैट मींस आई जस्ट हैव टू ऐड 1 मोर कार्बन. ये देखो मैंने ऐड कर दिया. दैट्स इट. So my iso part is also done. My butane part is also done. Now I just have to put hydrogens. Okay, so hydrogens डालने शुरू करते हैं. चलो, so CH3, CH, CH3. That's it, students. That's it. This is the structure. Isobutane. Or we can just iso structure is has CH3 CH3. You could direct draw that structure ना. Yes, perfect, perfect, perfect. इफ इन केस अभी ये कैसे बोल रहा है? देखो, आदित्य ने क्या बोला? आदित्य ने बोला कि सर आइसो देखते ही मैंने ये ड्रॉ कर दिया पहले. CH3, CH, CH3 एंड डैश डाल के रुक गया वो. सो आइसो तो बन गया. नाउ ही गोज टू द नेम अगेन, आइसोब्यूटेन. सो आइसोब्यूटेन से ही रिकॉग्नाइज्ड कि ब्यूटेन मतलब और कितने कार्बन्स मुझे लगेंगे? 1 मोर कार्बन. सो आदित्य ने क्या किया? एक और कार्बन यहाँ पे ऐड करके उसको हाइड्रोजन डाल दी. दैट्स इट. This is his approach. उसने इस तरह से अप्रोच किया. Perfectly correct. No problem with that. No problem with that. Okay, sir. Okay, so any one of these 2 approaches you can follow, students. इनमें से कोई भी का आप follow कर सकते हो. You can go ahead with your structure.
कंफर्म राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, किस किस का मिस्टेक हुआ प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स, कहाँ मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक हुआ बताओ मुझे, कहाँ सर मिस्टेक मैंने हुआ सी क्या? हाँ टेल मी। सेकंड कार्बन पे एच डाला, ओके, सेकेंड कार्बन पे एच नहीं डाला था, एच। एच नहीं डाला था। ओके ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं स्टूडेंट्स। दिस वाज आइसोब्यूटेन, आई विल गो टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज आइसोनोनेन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज आइसोनोनेन। चलो, तो अगेन आइसो मतलब क्या, 1 2, ठीक है, 1 देन 2 एंड सेकेंड पे आई विल ड्रॉ 1 मिथाइल ब्रांच। अगर आदित्य के हिसाब से हम गए तो वो कैसे करेगा, CH3 CH CH3 डैश। तो आदित्य ने पूरा आइसो एक साथ बना दिया, मैंने भी आइसो बनाया बट मैंने कार्बन स्केलेटन बना रहा हूँ, हाइड्रोजन मैंने नहीं ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट इज हमारे स्क्रीन पे दोनों के हिसाब से 3 कार्बन आ गए। नोनेन मींस इट हैज टोटल 9 कार्बन्स, सो 6 मोर कार्बन स्टूडेंट्स, 6 मोर कार्बन्स। सो आई विल ड्रॉ इन दिस पैटर्न। चलो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ओके, आदित्य ने भी सेम ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 एंड नेक्स्ट ड्रॉ ओवर हियर 6। ऑलराइट, 6 कार्बन्स ड्रॉ कर दिए हमने। देन आई पुट हाइड्रोजन्स नाउ, सो CH2 CH3 CH CH2 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 and CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट, दिस इज आइसोनोनेन। आदित्य के हिसाब से अपन जाए तो हमने सेम CH2 CH2 सेम CH2 ड्रॉ करना है खाली। Okay, keep adding CH2 now, 2 hydrogens on every carbon, and the last carbon will get 3 hydrogens. That's it. Understood? मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इसे टर्न मारा है। You can go in straight line and complete the structure. चलो, is it done? Students, is this done? So this is how you will approach drawing structures from common name. Common name से structure आप इस तरह से draw करोगे। ठीक है, चलो बातें सबको समझ में आ गई, सिंपल है। Is this understood students? Is this understood? Is this understood? Yes, sir. यस सर। Okay, Yes, sir. very good, very good. Chalo, let us go to the IUPAC now, students. Yes, very good. Chalo, but before that, I need revision. ठीक है, मुझे रिवीजन चाहिए आपसे। रिवीजन मतलब कि आप सब मुझे ओरली मुझे बोलोगे, आपको जो बोलना है मैं बताता हूँ कैसे, यू हैव टू टेल मी। ठीक है, आप पूरा मुझे कॉमन नेमिंग सिस्टम के रूल्स मुझे बताओगे, स्टेप्स मुझे बताओगे। सो आपको मुझे ओरली ऐसे बोल के दिखाना है कि फॉर कॉमन नेमिंग सिस्टम स्टेप 1 इज we have to identify if carbon chain is straight chain or branch chain. Step 2, we have to count the total number of carbons and give the name to the alkane. Step 3, we have to identify a suitable prefix. How to identify prefix? If it is straight chain, we have to use N. If it is branch chain, we have 2 options, iso or neo. I will use iso only if second carbon has 1 CH3. And I will use neo only if second carbon has 2 CH3 branches to it. That's it. ऐसे आपको स्टूडेंट्स बोल के मुझे दिखाना, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद सौम्या फर्स्ट। चलो सौम्या। So step 1, identify whether the carbon chain is straight or title. We are doing common naming of alkane. हाँ. Steps to give common Common to naming of alkanes. steps for common naming of alkanes. First, identify whether the chain is straight or branch. Then count the number of total. Then count the total number of carbons. Then decide the prefix. Whether if the chain is straight, then the prefix would be N, and if the chain is branch, there are 2 possibilities: neo or iso. Neo will come when there are 2 methyl branches on second or second last carbon, and iso will come when there is 1 methyl branch on second or second last carbon. Very good. Next will be Dhanashree. Dhanashree, can you hear me? Okay. Next will be Manasvi.
Nasvik audio issue है. No problem. Nevan Panchal. Nevan Panchal. Yes. Yes. Please tell me the steps to name common name, to give common name to an alkane. Nevan. Identify carbon chain straight/branched. Then count total carbons. uh, Name the alkane. Decide a suitable prefix. बाद में arrow N or ISO/NEO. Very good. Nevan, अब तक जो examples दिया मैंने solve करने आया? हाँ. Sure? Yes. Okay. Good. ठीक है, चलो. Next will be Mohan Gupta. Mohan Gupta. Shreyas Kirve. Shreyas Kirve. No reply. Okay, so yes. So yes. मम्मी आवाज कमी कर. Yes sir. Yes sir. Yes. बोलो. Hello. Yes. बोलो. You have to Steps give to me identify steps the to- common naming for alkanes. Firstly, we have to identify whether the given chain is straight or branch. Then we have to count the carbons and name the alkane. Then we have to decide the prefix whether it's N, iso or neo. Then iso 1-methyl. If iso is there, then 1-methyl branch is present on second or second last, and minimum 4 carbons should be there for iso. And for neo, 2-methyl branches should be present on second or second last branch. Minimum. Very good. Minimum 5 carbons. This is one additional point which Suyash has added. Well done, Suyash. 4 carbons minimum for iso and 5 carbons minimum for neo to be used. Okay, next is Rutvik. So steps for common naming is first you should identify it is straight chain or branch chain, and second you should count all carbons in chain, and third is identify the prefix. It's neo, iso, and iso or neo, and fourth is if it is neo, if it is iso, there will be a in second branch there will be a single methyl branch, and it will neo there will be a 2-methyl branch in second carbon. Okay, very good. Next will be Tisha. Yes, sir. Steps for naming an alkane. First, we have to identify whether the given chain is branch chain or cyclic chain. Branch chain or straight chain. Straight chain. Yeah, then we will count number of carbon atoms and name it according to that. Then we will give it a suitable prefix. The prefix would be N if the given structure is in straight chain. The prefix would be iso if second carbon atom has 2 methyl branches, and the prefix would be neo if the second carbon has 2 methyl. Okay. Next is Sujal. Sujal. Okay. Next is Akshat. Akshat, please go ahead. First, we have to identify the chain, whether it's straight or branch. Then count the number of carbons and name it. Then we have to identify the prefix, if it's N, neo or iso. If the second carbon has 2 methyl branches, then it's neo. And if it has 1 methyl branch, then it's iso.
Okay, what about N? When I will use N as the prefix? When it's a straight chain. It's a straight chain. Very well done. Next is Soham. Yes, Soham. Soham, can you hear me? Okay. Next is Rohit D. Yes, yes. Identify the chain whether it is identify the carbon chain whether it is straight chain or branch chain. Then count the number. Then count the number of carbons accordingly. Then give them the suitable prefix. If it is a straight chain, use N. If it has methyl on the if it has methyl on the second carbon, then use iso. If it has two methyl on the second carbon, then use. Okay, very good. Next is Aditya हो गया? sir. So बोल दिया? no sir. अच्छा नहीं बोला. हाँ, Steps बोल to दिया. give common names of alkanes. So first step is to identify the chain whether it's straight or branched. So next step is to count all the carbons. Then third step is to decide the prefix, and we decide on the basis whether it's straight chain or branch chain. If it's straight, then prefix will come as N, and if branch, there are two possibilities: neo or iso. We can go with neo and iso with their structure also. If the structure is CH3, 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 it will become neo, or iso it will become CH3, 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 or we can like if one methyl branch is present on the second carbon, it will become neo, or if two methyl branches is present on the second carbon chain, then it's iso. And one more thing, if we cannot give prefix to the three structures, that is methane, ethane, and propane. Very good. Methane, ethane, and propane are generally without prefixes. Very well identified, Aditya. Because we cannot give any methane, we cannot categorize it as straight chain alkane because it has only one carbon. Ethane has only two carbons. So there is no other option. It has to be a straight chain. It is understood. And same thing holds true for propane also. So generally for ethane, methane, propane, we do not use any prefixes. From butane onwards, we start our prefixes wala system. Okay, next is Rohit. Yes, Rohit, start. Identify carbon chain if it is straight or branched. Second, count number of carbons accordingly and name the alkane. Third is deciding the prefix for the carbon chain. While if it is n, if it is straight chain, then we denote it as n as a prefix, and if it is a branch, then we denote it as a iso or neo. If there are two carbon chain in a second place, carbon in a second carbon, then we denote it as neo. While there is one carbon chain, one methyl branch, one methyl in a second place, then we denote it as iso. While if there is no name, then we denote it as a no common name there. Okay, very good. Next is Bhumi. Yes, Bhumi. Please start. Bhumi Rao. Okay. Shreya Sawant. Yes, sir. So steps to identify common name of alkane. Identify firstly it is straight or branch chain. Decide the prefix like N, iso, neo. If it is a straight chain, we name it as N. Iso if we have CH3 C CH3, so we will name it as iso. And if neo, so CH3 CH CH3 CH3. So we'll name it as iso, then count all the number of carbons and give it as a common name. And for methane, ethane, and propane, we don't have. Okay. Next, Parshva Shah. Yes, sir. Identify a carbon chain if it is a straight or a branched. Then count total number of carbons.
Then decide a suitable prefix N, iso or neo. If if it is if on the if it is on the second if the methyl molecule is on the second carbon, it is iso, and if CH3 and CH3 is also on the second, it will be neo. Next is Darshan Salunke. Hello. Yes, Darshan. Please start. Yes, Darshan. Okay, Aryan Sawant. Aryan Sawant. Yes, sir. Yes, you have to give me rules to give common naming to alkenes. Steps for common naming to alkenes. First step, identify carbon chain straight branched. Second, count total carbon. Name the alkane. Decide a suitable prefix. Third step, N, iso or neo. Okay, very good. And iso. When do I use N? For a straight chain. Okay, when do I use iso? Second carbon. Second carbon should have which branch? Methyl. Methyl branch. Very good, Aryan. When do I use neo? Two methyl branches on second carbon. Very good, very good. That is right answer. Well done. Okay, okay, students. Now I'll be sending you homework. ठीक है, अभी मैं homework आपको अभी send करता हूँ. ठीक है, wait. That's it for today, students. I'll stop the recording now and let us discuss homework. ठीक है, homework discuss करते हैं.